शरीफ तहमी साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। माशाअल्लाह तरफ के साय तले हैं। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। चलिए अब इसका बाज़ाब्ता जो है हम लोग आगाज करते हैं। सबसे पहले तिलावत कुरान के लिए जो है हम दावत सुखन देंगे शेख मुश्ताक साहब को, वो कुरान शरीफ पेश करें। शेख मुश्ताक साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يزدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। آمين آمين. अब इसके बाद जो है नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत सुखन दूंगा मौलाना शकील साहब को। वो नात शरीफ पेश करें। मौलाना शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाएं। याद आई है अपनी खताएं, जब खुदा का ख्याल आ गया है। याद आई है अपनी खताएं, जब खुदा का ख्याल आ गया है। याद आई है अपनी खताएं, जब खुदा का ख्याल आ गया है। मेरे बेचैन दिल को वहीं पर, मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया है। मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया है। यूं तो मरियम भी है, हाजरा भी नेक खातून है, आसिया भी। यूं तो मरियम भी है, हाजरा भी नेक खातून है, आसिया भी। यूं तो मरियम भी है, हाजरा भी नेक खातून है, आसिया भी। बात जब आ गई है हया की, बात जब आ गई है हया की, फातिमा का ख्याल आ गया है। बात जब आ गई है हया की, फातिमा का ख्याल आ गया है। मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया है। जुल्म का जबर का सिलसिला था, एक तरफ सब्र का सिलसिला था। जुल्म का जबर का सिलसिला था, एक तरफ सब्र का सिलसिला था।
ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، بات جب حق و باطل کی آئی، بات جب حق و باطل کی آئی، اللہ کا خیال آ گیا ہے، بات جب حق و باطل کی آئی، کربلا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے، وہ جو مثل بشر تھے بظاہر، وہ جو روتے تھے امت کے خاطر، وہ جو مثل بشر تھے بظاہر، وہ جو روتے تھے امت کے خاطر، وہ جو مثل بشر تھے بظاہر، وہ جو روتے تھے امت کے خاطر، وہ جو لمبی دعا مانگتے تھے، وہ جو لمبی دعا مانگتے تھے، اس دعا کا خیال آ گیا ہے، وہ جو لمبی دعا مانگتے تھے، اس دعا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ جزاکم اللہ۔ ماشاء اللہ بڑی بہت ہی بہترین اور ترنم بڑی آواز میں آپ نے ماشاء اللہ زبردست کرنا چاہا، اللہ آپ کو خیر دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اسے تھوڑی سی میٹنگ ہی تھی، لیکن میٹنگ کا ایک ہونا چاہیے، وسیع حکیم مدنی کو جو ہے اس کا صدر منتخب کرتا ہوں، یہ صدر کی حیثیت سے شیخ بصیر حبیب مدنی حافظ اللہ کو میں مقرر کرتا ہوں بحیثیت صدر، ہے نا۔ تو ابھی اس کے بعد جو ہے میں آپ کو وہ جو مدعا ہے ہمارا میں وہ 2 منٹ ٹائمر رکھ دوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سارے بھائی اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين۔ اسرع لي قولي ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے دوستو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہمارے ابھی رحمۃ اللہ صاحب اور ہمارے شیخ بشیر حبیب مدنی صاحب بھی، انعام الحق صاحب بھی، اور بہت سارے لوگ آئے ماشاءاللہ، اللہ کو خیر دے۔ اور جو میٹنگ کو ہم نے ابھی فیس بک کے اوپر بھی لائیو کر دیا ہے، جو ہمارے بھائی فیس بک پہ دیکھنا چاہیں وہ فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ جڑیں، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور جو بھی ہمارے ملی مسائل ہیں، جو بھی ہمارے معاشرے کے اندر جو باتیں چل رہی ہیں، جس چیز کی کمی اور بیشی ہو رہی ہے، ہم اس کے اوپر انشاءاللہ ہر ہفتے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی احباب ہیں، جتنے بھی ہمارے علماء اعظام ہیں، علماء کرام ہیں، وہ سارے کے سارے اسے جڑیں اور اپنا اپنا ترک رکھیں اس کے اندر، اور اسی طرح سے جو ہے جو بھی ہمارے معاشرے کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیز آپ سامنے رکھیں، کیا کمی کیا بیشی۔ ابھی جو میں نے یہ میٹنگ جو میں نے جو شروع کیا تھا پچھلے ہفتے سے، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہمارے علماء کرام جو ہے ابھی سب سے پریشان جو کورونا کے اندر ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے علماء کرام ہی نظر آئے، تنخواہ بھی ویسے ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ابھی جو لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، تو اس لاک ڈاؤن کے اندر سب سے زیادہ جو پریشان ہے وہ ہمارے علماء طبقہ ہی ہے۔ تو کیوں نہ ہم لوگ
उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए हम लोग सोचें। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह, जुम्मे के दिन जब अज़ान हो तो तुम लोग दौड़ पड़ो, मस्जिद की तरफ तुम लोग दौड़ पड़ो। फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़िक्रिल बैत, और तिजारत को छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। और उसके बाद अल्लाह ने कहा कि फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और जब तुम नमाज पूरी कर लो तो जमीन के अंदर फैल जाओ और अल्लाह तबारक व तआला का फजल, उनका रिज़्क़ तलाश करो। और हम लोग जब दुआ करते हैं तो दुआ के अंदर कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना, हम लोग जब दुआ करते हैं तो कहते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। हम लोग सबसे पहले दुनिया के लिए अच्छाई मांगते हैं और आखिरत के लिए भी। हम अगर अपने रूह के लिए, हमारे जिस्म के साथ दो चीज का ताल्लुक, हमारे रूह और जिस्म का। रूह के लिए यकीनी तौर से दीन की जरूरत है, इस्लाम की जरूरत है, ईमान की जरूरत है, लेकिन हमारे जिस्म के लिए जहाँ पे बहुत सारी चीजों की जरूरत है वहाँ पे हमें रिज़्क़ की भी जरूरत पड़ती है, तजारत की जरूरत होगी। और अगर हमारा तजारत मजबूत हो, हमारे पास अगर पैसा हो, तो इसी पैसे की वजह से हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, दीन की खिदमत कर सकते हैं, लोगों के अंदर जो है सदका व खैरात कर सकते हैं, लोगों को मजबूत कर सकते हैं। जो बाल बच्चे हमारे पढ़ने के लायक नहीं है, कमजोर हैं, उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा ताउन करके उनको मदरसे तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए हमें और आपको एक ऐसा सेटअप बनाने की जरूरत है कि हम लोग 20 साल मदरसे की जिंदगी में गुजार देते हैं, लेकिन 20 साल के बाद जब हम वहां से निकलते हैं तो हम लोगों को बिल्कुल दुनिया घर नजर आता है। जाएंगे तो कहाँ जाए, करें तो क्या करें। तो इसीलिए हमने ये मीटिंग रखा है ताकि हमारे उलमाए किराम इसके ऊपर गौर करें, फिक्र करें, सोचें कि हमारे बच्चे, जो अब हमारे बच्चे निकलेंगे, कम से कम वो बच्चे हमारी तरह ना हो कि 20 साल जिस तरह से हमने बर्बाद किया है और हम आने के बाद जो है हमें कुछ नहीं आता, तजारत और बाकी चीजों के मुतालिक हमें समझ नहीं आती, तो हमारे बच्चे ऐसे न हो। हम अपने मदरसे की तालीम को ऐसा सेटअप दें, ऐसे निसाब हम मुकर्रर करें, ऐसे निसाब को मुतय्यन करें जिसके अंदर हमारे बच्चे अल्लाह व काल रसूल को भी समझें, अब उसको याद करें, उसके ऊपर अमल करें, और इसी तरह साथ साथ जिंदगी गुजारने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो तजारत है, खास तौर से उसके ऊपर हम लोग ध्यान दें। तो मैं यही कहूँगा कि हमें और आपको इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। खुसूसन अभी शेख हमारे अब्दुल रहीम मदनी हफिज़ुल्लाह से भी अभी वो भी जुड़ रहे हैं, जुड़ गए मुमकिन है, तो जुड़े हुए थे, तो वो उनसे मेरी बात हुई है, तो वो भी थे और शेख नुमैर साहब भी थे। तो जब बात चली कि हम अपने बच्चों के अंदर तजारत को कैसे फरोग दें, तो उन लोगों ने कहा कि मदीना मुनव्वरा के अंदर जब हम लोग पढ़ने के लिए गए तो हमने देखा कि बहुत दूर तक जो वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, वो जैसे नज्जार अगर किसी को सीखना हो तो बढ़ाई का काम सीखना हो, या अगर किसी को प्लम्बर का काम सीखना हो, या अगर किसी को इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना हो, तो बहुत सारी चीजों का जो वहां में लगा हुआ है और आदमी सीखते हैं, उसको इम्तिहान भी होता है, उसका बाद आपका सब कुछ होता है। हमने कहा जब आप लोग जानते हैं इन सब चीजों को, तो वही चीजें हम अपने नेपाल और भारत के, इंडिया के मदरसे के अंदर हम लोग चीज क्यों नहीं लागू कर सकते। तो बहरहाल इस चीज के ऊपर मैंने उससे गुफ्तगू की और वो आएंगे तो वो लोग खुद ही बताएंगे, और जो भी हमारे ताजिर किस्म के हमारे उलमाए किराम या जो लोग भी हैं वो हमें सजेशन दें, हमें इसका तरीका बताएं कि कैसे हमारे उलमाए किराम या हमारी आवाम जो बहुत ही गरीब है, वो हमारी आवाम जो बहुत गरीब है उसको तजारत के ऊपर कैसे उभारा जाए। दो चीजें हैं अभी हमारे पास कि तलबा के दरमियान, तलबा के अंदर हम लोग कैसे तजारत को फरोग दें, उसको कैसे उसको तालीम दें, है ना। इसी तरह से हमारे आवाम भी बहुत गरीब है, उनके अंदर भी तजारत का कोई शऊर नहीं है ना। और मैंने पिछले हफ्ते कहा भी था कि जैसे हम लोग चाय के लिए उठते हैं तो सबसे पहले हम लोग दूसरे तरफ निकल लेते हैं। हमारे मोहल्ला का कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो चाय का कम से कम दुकान खोल दे ताकि लोग कम से कम उसके पास जाए, उसके जरिए से तजारत से पैसा हासिल करे, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसी आग क्यों हम महसूस कर रहे हैं, कहाँ कमी है हमारे अंदर और हमारे आवाम के अंदर, उन कमी को पूरा करने की कोशिश की जाए। तो मैं सबसे पहले शेख बशीर हबीब मदनी हफिज़ुल्लाह से कहूँगा कि आप जो है इसके मुतालिक हमें गुजारिशात पेश करें। जज़ाकल्लाह खैर। शेख हबीब मदनी हफिज़ुल्लाह। यानी हम शुरू करें यार? जी 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 आप शुरू करें। जी, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह का
जिसने हम लोगों को इतना मौका मुयस्सर किया कि आज मैं सऊदीया में सफर पे हूँ और आप अहबाब के साथ, तमाम अहबाब के साथ देख भी रहा हूँ और बात भी कर रहा हूँ। और उस इजादात का जो अल्लाह ने लोगों को दिया है कि देखो क्या क्या इजाद कर लेते हो तुम, इंसान अल्लाह का बनाया हुआ इंसान इजाद किया, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और थोड़ी गमी भी होती है कि हम लोग इस मामले में बहुत पीछे हैं, दूसरे के बनाए चीज को इस्तेमाल करते हैं और आज तक हम लोगों ने बतौर मुसलमान दुनिया को कुछ नहीं दे सका तौहीद के अलावा। खैर, अल्लाह ताला जिससे काम ले अल्लाह की मर्जी है, नंबर एक। नंबर दो, और मैं मौलाना अबुल कलाम साहब से बातचीत हुई थी तो उस दिन से मैं सोच रहा था कि कैसे करूं, लेकिन एक साथी से मिलकर, पुराने जमाने के लोग हैं उससे हैं, लेकिन इसमें कोई ऐब नहीं समझते, सीखना कोई ऐब नहीं। आवाज आ रही है? ठीक है। एक बात, तिजारत के सिलसिले में मैं तो बात, आप लोग है ये है कहने के लिए, लेकिन मेरे दिल में जो बात थी आप लोग के सामने बहुत दिनों के बाद लाइव हुआ हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि मौलवी कासिम साहब से भी बात हुई थी एक मरतबा, मौलवी अबुल कलाम साहब से भी बात हुई। आप लोगों के दिल में जो तड़प है, जो तमन्ना है, अल्लाह ताला उसमें और तक़वियत दे और उसको पूरा करे, आमीन। दूसरी बात यह है कि ये तड़प सब में होनी चाहिए, सब आदमी के पास ये बात होनी चाहिए कि दीन इस्लाम की खिदमत कैसे करें, क्योंकि सबसे बेहतर काम यही है कि दीन इस्लाम की खिदमत हो। और हम लोगों के यहाँ स्कूल में और बड़े बड़े वक्ता लोग बोलते रहते हैं कि सर्टिफिकेट को तिजारत से या रोटी रोजी से मत जोड़ो, और हम लोग एज ए मुसलमान इस बात पर विश्वास रखते हैं कि हमारे तकदीर में जो लिखा हुआ है वो हमको मिलेगा ही, और जो हमारे तकदीर में नहीं लिखा हुआ हम नहीं पा सकते। दुनिया में जाने से पहले हमारे जो लिखा हुआ हमको मिल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों के तशजीह कल्ब के लिए मैं कहना चाहता हूँ, साथियों, मेरे अजीजों, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग तो अब आखिरी पड़ाव में आ गए, कुछ कर नहीं सके। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि अपने आने वाले बच्चों को, अपने आने वाले नस्ल को सही माहौल दें, अच्छे माहौल दें, अच्छा घर दें, हर तरह से प्रोटेक्ट करें, हिफाजत करें, हिमायत करें, लेकिन हम लोग नहीं कर सके। इसके लिए हम आपके हैं वो सब की तरफ से मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। हम लोग आप लोगों को ऐसा माहौल नहीं दे सके, झगड़ा, इख्तिलाफ, नफरत, अदावत का माहौल है। इस सब को अल्लाह ताला आप लोगों को मजीद ताकत दे, उसत कल्बी दे, शरह सुदूर दे कि उस मामला को सही तरीके से डील कर सकें और सबको साथ में लेकर के चलें, नंबर एक। नंबर दो, मेरे अजीजों, कोई काम करने से पहले एक प्लानिंग होता है और एक इदारा होता है, इरादा होता है, अज़्म व सम्मम है तो वो काम करें और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए रास्ता आसान करते जाएंगे और आपको कामयाबी इंशाअल्लाह पाते जाएंगे। लेकिन हम लोग जो देहात में कहते हैं कि चोर जब आता है गांव में, पहले हम लोग के वक्त में चोर आता था तो चोर सब शोर करते थे और बाहर निकल करके कोई एक ही दो आदमी आगे बढ़ के जाता था, और पीछे जो लोग शोर करते थे उससे आगे वाले को ताकत मिलती थी और उसका मानवियत मुर्तफे होता था। इसके वजह से वो चोर को पकड़ लेता था। हम लोग आप लोगों के पीछे हैं, आप लोग आगे बढ़ें, हम लोगों की दुआ आपके साथ है, हम लोगों के हर सजदे में आप लोगों के लिए कामयाबी के लिए दुआ करते हैं, खासकर इसलिए कि आप लोग इस्लाह के नीयत से निकले हैं और हम लोगों की जब भी जरूरत पड़ेगी हम आप लोग के साथ हैं, कभी पीछे रहने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पर एक बात यह है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उस काम में आपको समाज में बहुत से तहद्दी और क्या कहते हैं टेंशन और चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी आदमी आपके लिए माला तैयार करके नहीं रखेगा, अगर कोई रखेगा तो कांटे बिछाएंगे आपके रास्ते में, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे। लेकिन मैं अबुल कलाम साहब का खासकर ध्यान इस पे दिलाना चाहता हूं कि ये जानते हैं, इस मामले में समझते हैं कि एक वाकया है कि एक आदमी पेंटिंग बनाता था, बहुत बेहतरीन पेंटिंग बनाता था। एक रोज पेंटिंग बना करके चौराहे पे रख दिया और लोगों से कहा कि इस पर कुछ लिखें। सब लोगों ने नकद लिखना शुरू किया कि ये टेढ़ा है, ये सीधा है, ये ऐसा होना चाहिए, ये नाक मोटा है। शाम तक लाखों टन की ताकीद आ गए, उस पर कमेंट आ गया। अपने बाप से मशवरा किया कि मैं इतना बड़ा पेंटर हूँ, इतने ऐब लोग निकाल दिए मेरे अंदर। तो कहा बेटा सेम फोटो फिर बनाओ और रोड पे टांग दो, चौराहे पे लगा दो और कह दो
कि गलती की सुधार करें, गलती की सुधार कर दें, ये लिख करके दिया, शाम तक एक भी कमेंट नहीं आया। इसलिए मेरे साथियों, आपके पीछे लोग नक्द जरूर करेंगे लेकिन इस्लाह करने वाला नहीं है। अल्लाह तौफीक दे सब आदमी को कि ये बात समझे। और एक शेर भी है, कहते हैं कि साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चखे माल रस, गिरे तो चकनाचूर। और आप लोग जो काम कर रहे हैं इसमें एक बात और भी कहते हैं कि आप लोग हमेशा कहते रहते हैं कि सब लोग हमारे साथ नहीं है, आवाम भी साथ नहीं। आवाम सब लोग आपके साथ है, सब हम लोग सब लोग साथ हैं, लेकिन आवाम में खौफ है, एक डर है। वो खौफ और वो डर कब से शुरू हुआ? जब से जामिया सलफिया जनकपुर में जो लोग कायम किए थे, उस वक्त में जो घटनाएं हुई उसके वजह से लोग डर से गए। उसके बाद हमारे कुछ शेख ने मिल करके कोशिश की कि फिर से उसको अहया किया जाए, दोबारा जिंदा किया जाए। उनका नाम रखे थे वो लोग मरकज इब्ने बाज। हम लोग बेलहा से गए थे, हर जगह से लोग गए थे, और हम लोगों ने ये कहा था कि हमारे बुजुर्गों और सलाफों के ख्वाब की ताबीर जामे सलफिया, क्योंकि ख्वाब की ताबीर इब्ने बाज ही सही हम लोग कबूल कर लेंगे, लेकिन फिर अगर आप लोग दर्द दीजिएगा, तकलीफ दीजिएगा, तो शायद ये कौम बर्दाश्त नहीं कर पाए। और हुआ वही जो अल्लाह को लिखा मंजूर था। वो मरकज इब्ने बाज भी बोरिया बिस्ता बंद करके गायब हो गए। लोगों के अंदर खौफ है, लेकिन है तमन्ना कि कोई काम करे, आगे बढ़ें, काम करें। आप जब आगे बढ़ते जाएंगे अल्लाह ताला रास्ता हमवार करता जाएगा। मेरी नेक दुआ है आप लोगों के साथ। अब ये कहिएगा कि समाज में किस तरह के लोग हैं? समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कोई आपके सामने में कांटे बिछाएंगे, कोई आपके इंतजार में है कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ से फंड लाते हैं, कहाँ से बजट लाते हैं। कोई आदमी सिर्फ इसी इंतजार में है कि ये काम मौली कासिम ही क्यों शुरू किया, मौली अबुल कलाम ही शुरू क्यों किया, वहां कतर ही से क्यों शुरू हुआ। ये बात है, समाज में हमारे अंदर कमी बेशी है, हम लोगों के मिट्टी में ये खूबी पाई जाती है। खैर, जो कुछ भी हो, बहुत नेक काम कर रहे हैं। और जहां तक है कि सर्टिफिकेट को तिजारत से जोड़ दिया जाए, और अभी जो लॉकडाउन हुआ है उसमें हम देखे भी हैं कि उलमाए किराम परेशान भी हैं, लोगों ने तनख्वाह नहीं दिया है। तज़हब अहलुद्दुसूर बिलउजूर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने फरमाया था कि ज़हब अहलुद्दुसूर बिलउजूर, पैसे वाले तो उजरत में भी आगे चले गए और सब चीज में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बता करके बाद में कहा, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह है यूतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसको चाहता है देता है। इसलिए मौलवी कासिम साहब, आप इमाम अबू हनीफा के तरफ देख लीजिए, तुजार थे, बड़े बड़े उलमाए किराम जितने थे तुजार थे। इमाम बुखारी जब हदीस लिखने गए तो अपना जो बिजनेस कर रहे थे वो बंद करके आ गए लिखने के लिए। तो किसी चीज को करने के लिए सबसे पहले आदमी का टेंशन मुक्त होनी चाहिए। आदमी टेंशन जो होता है तो बड़े बड़े का दिमाग का दिवालिया गुल हो जाता है। मौली नूरुलैन हरलाखी वाले कहे हैं कि जामिया इस्लामिया पर बात लिखने के लिए आदमी को कम से कम फिक्री आजादी होनी चाहिए। इसलिए फिक्री आजादी के लिए जरूरी है कि आदमी का इक्तिसाद मजबूत हो। बात बहुत अच्छी है और बात अच्छी होनी भी चाहिए, लेकिन एक बात और कहते हैं मौलवी कासिम अलियावी साहब, हमारे बच्चे जो मदीने के जिक्र किए हैं, जितने दक्तूरा कर रहे हैं, माजिस्टर में हैं, कुलियात से जो फारिग हो रहे हैं, कहाँ रखेंगे इन लोग? क्या करेंगे ये लोग? हर आदमी मशरू खोल करके बैठ जाएगा, हर आदमी की वही बात होगी, सब वही बात होगी। लेकिन आप लोग जो बगैर किसी भी मरकज के काम कर रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन काम है। शेख, आवाज लग रहा है कि नेटवर्क की वजह से कट रहे हैं। हो जाएगा सही, लोग ज्यादा हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है। शेख से राब्ता करें, बात बहुत उम्दा कर रहे थे। वैसे मफहूम वाज़े हो चुका है, कम वक्त में ज्यादा बातें कर लें और लोगों को भी मौका दें। अल्लाह जज़ाए खैर दे शेख बसीर साहब को। बारकल्लाह फीकुम। हाँ, अब इसके बाद जो है मैं शेख अब्दुल रहीम मदनी हफिज़हुल्लाह से गुजारिश करूंगा कि आप जो है अपने कीमती आरा जो है हमारे सामने पेश करें, हम लोगों के सामने। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। शेख अब्दुल रहीम मदनी हफिज़हुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5 मिनट के अंदर जो है सबको निपटा दीजिए, ज्यादा लोग आज शामिल हो गए माशाअल्लाह। ठीक है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन
बोले 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 अल्लाह रब्बुल आलमीन का बोले। जी शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौका फराहम किया है कि हम सऊदी अरब में बैठे हुए इख्वान से मुख्तलिफ जगह इस जूम के ज़रिए से इकट्ठा हुए हैं और लग रहा है कि आमने सामने बात कर रहे हैं। जी जी तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी नेमत है और ये वसाइल में से है। वसाइल को इंसान चाहे तो अच्छी चीज़ में इस्तेमाल करे और बहुत सारे लोग बुरी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। हम सारे भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बार बार जमा होने की तौफीक दे। आमीन आमीन। मैं ख़ास तौर से इख्वान से ये कहना चाहता हूँ कि हेलो सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ी सी वीडियो कभी कभी रुक जाती है, कोई बात नहीं, बोलते रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन का काम जिसे लेना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे उसकी तौफीक देता है। काम करने वाले को काम करना चाहिए और जितने भी भाई हैं बजाय इसके कि तनकीद करे, ताउन करना चाहिए। देखने वाले यानी बहुत सारे कमेंट वगैरह देखने में आता है, बहुत सारे लोग लिखते हैं, तनकीद ही पे लिखते हैं, ज़्यादातर लोग तनकीद ही पे लिखते हैं कि उलमाए कराम परेशान हैं और उलमाए कराम के साथ ज़्यादती होती है। तो मैं बिलखुसूस उलमाए कराम से कहना चाहूँगा कि तकरीबन हम हमारे नज़रिए के मुताबिक उलमाए कराम के अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं और 80 से 90% उसके जिम्मेदार उलमाए कराम हैं। सुन रहे हैं मेरी बात? जी बिल्कुल बिल्कुल। उलमाए कराम को चाहिए कि ये समझे कि पेशे के तौर पे हमने पढ़ा लिखा नहीं है, ये दीन के लिए हमने पढ़ा है और पेशा एक अलग चीज है। पेशा के लिए इंसान दुनिया के अंदर कोई भी काम करे। आज देखने में आता है कि गांव घर के अंदर भी लोगों को हमने बिगाड़ा है। आज तनख्वाह नहीं मिल रही, उसकी वजह क्या है? उलमाए कराम है, चाहे इदारे में चाहे गांव घर में। अगर उलमाए कराम, आज बतलाइए कि कितने लोग ज़कात का मफहूम माना समझाते हैं गांव घर के अंदर। लोग धान उपजाते हैं, अच्छा जो है जो है चीज उपजाते हैं तो अच्छा बेच डालते हैं, अपने घर के अंदर दाखिल कर लेते हैं और मन सेरा कहा जाता है। मन में एक शेर निकालते, कहीं पे कमोबेश निकालते और जो खराब होता है वो निकालते हैं। इसमें उलमाए कराम का किरदार होना चाहिए। ज़कात किसे कहते हैं? सिर्फ आप फसल के अंदर निकालते हैं, पैसे के अंदर भी ज़कात है, इसी तरह जेवर के अंदर भी ज़कात है। हम लोगों को समझाएं, लोगों को अपने इसमें लाएं। और दूसरी चीज क्या है कि हम अपनी इज्जत व वकार को बहाल करें लोगों के सामने। इज्जत व वकार लोगों के सामने में आज अपने इलाके में बिलखुसूस देखें, उलमाए कराम में से मैं समझता हूं कि आधे लोग बेनमाजी हैं। आप जाके देखिए गांव घर के अंदर लोग कैसे आपकी बात को तस्लीम करेंगे, लोग आपकी इज्जत कैसे करेंगे, लोग आपकी बात को कैसे मानेंगे। तो आप लोगों के सामने अपनी इज्जत को बहाल कीजिए, एक दूसरे की इज्जत व एहतराम कीजिए। उलमाए कराम में से सब एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, एक दूसरे की गिबत, ये फलां ऐसा है, फलां इस तरह से है, वो ऐसा करता है, एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं। तो मैं सबसे मुख्तसर वक्त के अंदर ये कहना चाहता हूँ कि इसके सबसे बड़े जिम्मेदार उलमाए कराम हैं। गाँव के अंदर इस्लाह करें, गाँव के अंदर लोगों की ज़हन साजी करें, गांव के अंदर लोगों को इस बात पे लगाएं कि ज़कात ये फुकरा और मसाकीन के हुकूक में से है। हम लोग अपने जेब से निकाले उलमाए कराम को दें तनख्वाह, हम अपने जेब से निकाल के अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करें। ये सारी चीज जो है रखें अवामुन्नास के सामने। जब आप खुद सही रहेंगे और अवामुन्नास की भी तरबियत करेंगे, फिर वो बच्चे की जो है तरबियत करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। एक तो ये चीज है। और इसी तरह से मदारिस के अंदर भी, मदारिस जहाँ पे है, हर आदमी खोल करके, मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं कहता हूँ, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलाहियत दी है और जो करना चाहते हैं करें, लेकिन इंसान हर आदमी खोल करके और इस तरह से अपने जेब में रख करके
मरकज मदरसा न चलाए, बल्कि करना ही है, काम करना है, किसी के साथ मिलके करें, 2 हो 4 हो 6 हो, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक ही गांव के अंदर 5 हो, एक ही शहर के अंदर 10 हो, ये तो कोई माना नहीं रखता है कि हर आदमी जो उसका अहल नहीं है वो भी जो है करना शुरू कर दें। और फिर बात यही आएगी, लोग कहेंगे कि जो है आप कौन से जो है उसके अहल हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इत्तेफाक व इत्तेहाद से सब मिल बैठ करके जो जिससे होने वाला है करें, उसी के अंदर इत्तेफाक करें, और इसको ना समझें कि ये फलां का इदारा है, बल्कि ये समझ करके कि हमारा भी है और साथ मिल के चलना चाहिए, उसमें हिस्सा लेना चाहिए, और उसके अंदर जो है हिस्सा लेकर के उसको करने की कोशिश करनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह हर आदमी एक दूसरे की ताउन करें, और खास तौर से आलिम उलमा ये जो है पेशा न समझें कि हम 5 यानी 24 घंटा ड्यूटी करते हैं और फिर उसके बाद हमारी तनख्वाह ये है। आप वसाइल नहीं जो है बना रहे हैं, वसाइल बनाना हमारा काम है। ये लोग नहीं जानते हैं कि किस तरह से जो है किस तरह से फंड जमा करें और किस तरह से वसाइल बनाएं। हमारी गलती है कि हमारे माहौल माशरे के अंदर जाहिल लोग सदर सेक्रेटरी बने हुए हैं, और इसी तरह से ये चीज खास तौर से इसकी जो है तनसीक तंजीम जमीयत की तरफ से होनी चाहिए। लेकिन हम लोग कभी जो है शिकवा शिकायत नहीं करते हैं, हर आदमी जो है करे, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, क्या ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और वली अमर की इताअत करो। मेरी आवाज जा रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी, तो वली अमर किसको कहते हैं? वली अमर उसको कहते हैं जिसको लोग मुंतखब कर दें कि आप हमारे सरपरस्त हैं, लोगों के इंतखाब से जो है वली अमर हो। लेकिन एक आदमी खुद ही वली अमर हो जाए तो उसकी इताअत क्या करेंगे? आदमी तजारत के ऊपर जो है लाठी के बलबूते पे जोर जबरदस्ती जुबान चर्ब, तो नहीं, कहने का मतलब ये है कि आदमी जो है लोग ऐसे लोगों को ये करें। बहरहाल दूसरी बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि तिजारत और हिरफा और सुनात, मैंने कहा था कासिम साहब से, मैंने कहा था इससे पहले कि हम लोग जब पढ़ते थे जामिया इस्लामी के दौर में तो वो तनमियतुल महारात यानी मुख्तलिफ शोबे थे जिसके अंदर कहरबाई और इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये सब जो है सिखाते थे। इसाफ यानी मतलब जो है जो इलाज वगैरह का होता है पहले मरहले का, ये सब सिखाते थे। तो इसी तरह से हम जहाँ पे मदरसा रखते हैं वहाँ पे वसाइल वगैरह मुहैया करें, और वहीं पे बच्चे जो है अगर 6 महीना साल भर एक चीज में कोशिश करते हैं, जैसे जो है इलेक्ट्रिशियन सीख लेते हैं या कोई जो है इसी तरह से प्लम्बर का काम सीख लेता है, कोई और जो है दूसरा काम सीख लेता है, तो अक्सर बच्चे कुछ ना कुछ हुनर लेकर के निकलेंगे और उसके बाद माश के लिए जो है परेशानी नहीं होगी। मैं बतलाता हूँ, मैं भी सिलाई सीखे हुआ हूँ और मैं लेडीज जो है कपड़ा अच्छी तरह से सिल लेता हूँ, और मैं झंडा नगर में अल्हम्दुलिल्लाह सीखा था, और मेरे ही पीछे पीछे सफीउर रहमान छेघरिया वाले, मैं जब जाने लगा और मैं सीख रहा था तो उसी जगह थोड़ा बहुत जो है वो भी सीखे थे। लेकिन ये देखिए कि फरागत के बाद वो काठमांडू में सिलाई करते रहे, इसी तरह सऊदीया आए, सऊदीया में भी सिलाई करके और अच्छा पैसा उन्होंने कमाया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो इदारे हैं जी, वो शायद कपड़े का दुकान भी खोले हुए हैं, सिलाई भी साथ में। हाँ सब सिलाई, वही कह रहा हूँ ना कि अल्लाह ताला सबको बरकत दे। कहने का मतलब ये है कि आदमी के पास पैसा ना हो, सिलाई करे, थोड़ा बहुत पैसा करके फिर जो है कपड़े रख ले। इसी तरह से इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, तो बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। लेकिन इस पे जो है सारे लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। हर आदमी कहता है, बिल्लियों ने मशवरा किया, चूहों ने मशवरा किया कि बिल्ली से कैसे बचा जाए, तो सारे ने कहा कि बिल्ली के जो है गले में घंटी बांध दी जाए, उसके बाद जब बिल्ली आएगी तो घंटी बजेगी और हम लोग बच जाएंगे। बांधे तो बांधे कौन? कहने के लिए सारे लोग कहते हैं कि किस तरह से इसका हल निकाला जाए, लेकिन कोई भी शख्स 100 रियाल जेब से निकालने के लिए तैयार नहीं होता है, इल्ला माशाअल्लाह। नहीं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर जितने भी लोग बाहर हैं और उसके लिए जो है फंड इकट्ठा करें, उसके लिए कमेटी हो,
کہ ہم اس چیز کو قائم کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ مدد کرنا چاہتے ہیں, یہ فلاں ادارہ ہے, ہم اس کے اندر یہ چیز جو ہے لانا چاہتے ہیں, کوئی بھی ادارہ والا منع نہیں کرے گا. لیکن آپ کہیں گے کہ فلاں شخص جو ہے ادارہ میں ہے اور وہی ہر چیز جو ہے کر لے, اس کی ذمہ داری ہے اور اسی کے کاندھے پہ ہے, اللہ کے یہاں وہی پوچھا جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ تعاون کریں اور اس کو جو ہے کس طرح سے کریں گے اس کے لیے جو ہے بحال کریں. ماشاءاللہ اس سلسلے میں جو ہے قاسم صاحب اور ابوالکلام صاحب یہ دونوں متحرک ہیں وہاں قطر کے اندر, اور وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہی ہے. لیکن اسی طرح ہر جگہ متحرک ہونے کی ضرورت ہے. صرف 2 آدمی 4 آدمی 6 آدمی 10 آدمی وہاں ہو جائے تو ایسے نہیں, بلکہ سارے لوگوں کو, علماء کرام جتنے بھی ہیں, ہمارے بھی بچے ہوں گے, ہمارے بھی بیٹے ہوں گے, پوتے ہوں گے, اسی طرح سے ایک سلسلہ چلے گا. تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم اس چیز مہیا کریں. اگر جو ہے 10 آدمی 100 ریال نکالتے ہیں تو 1000 ریال ہو جائے گا, اس کے اندر ہو سکتا ہے تو 4 مشین لگا دیں گے. اسی طرح سے جو ہے دوسرا کام کرائیں, تیسرا کام کرائیں, تیسری چیز جو ہے اس کا جو ہے تو تخطیط ہونا چاہیے. اس کے لیے تخطیط کی ضرورت ہے, میٹنگ کی ضرورت ہے, اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. صرف کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزام لگائیں. ہر آدمی ایک دوسرے پہ الزام لگاتا ہے کہ فلاں آدمی ہے فلاں نہیں کر رہا ہے, فلاں آدمی ہے فلاں نہیں کر رہا ہے, فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے جو ہے اس طرح سے کیا. تو الزام سے بہتر ہے کہ ہم اس اصلاح کی کوشش کریں, اور اصلاح کے اندر ہمیں کس چیز کی قربانی دینی پڑے گی؟ پیسے کی, رائے مشورہ کی, اور اسی طرح سے اور کسی جانی قربانی دینی پڑے گی. کس چیز کی قربانی دینی پڑے گی؟ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ قوم کے اندر جو ہے بیداری آئے گی. قوم کے اندر, گاؤں گھر کے اندر بھی یہ چیز شروع کریں گے, ہر جگہ شروع کریں گے, ادارے کے اندر بھی شروع کریں گے, اور دین کو ہم جو ہے دین سمجھیں, دین کو اپنا جو ہے سب چیز کے اوپر فوقیت دیں. صرف جو ہے یعنی کہنے سے کہ اس طرح سے ہوتا ہے ایسا ہوتا نہیں. دین کو جو ہے مطلب یہ ہے کہ نماز کی پابندی, علماء کرام خاص طور سے نماز کی پابندی کریں, اور دین کی جو ہے دین کو ہم ترجیح دیں. گاؤں گھر کے اندر بھی ہم کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے خود نماز پڑھیں گے. ہم لوگوں کی اصلاح کریں, لوگوں کو جو ہے جمع کریں, گاؤں گھر کے اندر بھی ان لوگوں کو کلمہ سکھائیں, ان لوگوں کو جو ہے دین کی ترغیب دیں, ان کو بچوں کی جو ہے تعلیم و تربیت کے بارے میں بتلائیں. تو انشاءاللہ اس طرح سے ماحول معاشرے کے اندر اچھا جو ہے سدھار ہوگا. بس یہی کہنا تھا. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے. بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس کے اوپر بول دیں کہ بچوں کو مدرسے کے اندر تجارت کو کیسے فروغ دیا جائے. یعنی طالب علم جو ہے 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं کی جماعت کے جو بچے ہیں ان کے اندر جو تجارت کو کیسے فروغ دیا جائے, یعنی وہ کیسے تجارت کو سیکھیں. جیسے الگ سے جو ہے MBA والے MBA کراتے ہیں, ہے نا, تجارت کے تعلق سے بھی, یا ہر ایک چیز کے متعلق الگ الگ ہے. تو یعنی فضیلت تک ہوتے ہوتے کیا پڑھائی کے سسٹم میں بھی پڑھایا جائے, یا صرف باہر سے رکھ کر کے ہی ہم سکھا دیں تو کافی ہے؟ دیکھ اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے والے ہیں. اس کے لیے کیا ہے کہ کچھ چیزوں کو مدرسے میں شروع کیا جائے. جیسے ہم لوگوں نے پہلے جو ہے شروع کیا تھا اور کمپیوٹر وغیرہ سکھا رہے تھے, اور مرزا اللہ صاحب جو ہے سکھا رہے تھے. تو ان کو ہم لوگ جو ہے دے رہے تھے, پیسے دے رہے تھے, اور بچوں سے بھی شاید جو ہے کچھ فیس رکھا گیا تھا. تو کچھ چیزوں کو ہم مدرسے میں جو ہے رکھیں, مرکز میں رکھیں, اور وہاں سے بچوں کو جو ہے یہ کیا جائے. اور جو چیز مدرسے میں نہ ہو سکے باہر سے ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ بچے جو ہے یا ان کے سرپرست جو ہے درخواست دیں کہ ہمارے بچے یا بچوں کو اس طرح سے اکٹھا کیا جائے جو بڑے بچے ہیں, اور ایک ساتھ مل کر کے خود مرکز والے بات کریں گے. باہر کریں گے بات تو مرکز والے, تاکہ بچے کب جا رہے ہیں کب آ رہے ہیں, ان کا شیڈول کیا ہونا چاہیے. تعلیم کو رکھ کر کے, تعلیم حاصل کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں سیکھیں. اس لیے کہ دین, میں نے کہا نا کہ تعلیم کو بالکل جو ہے الگ نہ کیا جائے. جس طرح سے جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اسکول میں پڑھتے ہیں تو جو ہے صرف دنیاوی اعتبار سے رہ جاتے ہیں, مدرسے میں پڑھتے ہیں تو اسی سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا پیشہ ہے, مولوی گیری ہی جو ہے پیشہ ہے. اب نماز اور دوسری چیز کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی میں سے ہے. حالانکہ ڈیوٹی نہیں سمجھنا چاہیے. نماز وغیرہ کو ڈیوٹی نہ تو گاؤں کے لوگ سمجھیں ان کی ڈیوٹی میں سے ہے, اور نہ ہی مولوی عالم کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری ڈیوٹی میں سے ہے, بلکہ یہ چیز الگ رکھے. اسی طرح سے دعوت ہے
किसी को जो गांव मोहल्ले में बूढ़े लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनको दावत व तबलीग करना, ये ड्यूटी नहीं समझे, ये समझे अल्लाह ताला की तरफ से ड्यूटी है। ये हमारे जो है मदरसे की तरफ से ड्यूटी नहीं, इसको खुद ही करना चाहिए। तालीम को सिर्फ समझे कि तालीम हम बच्चों को देते हैं, उस पे जोर देना चाहिए, तालीम पे जोर देना चाहिए। अब गांव घर में लोग जो है तालीम पे, उस्ताद जो है तालीम पे जोर नहीं देते हैं, वो लगे रहते हैं कि फलां को जो है ले जाना है जनकपुर, फलां को ले जाना है दरभंगा, फलां को जो है फलां ये करना है, फलां को वो करना है, उस चीज पे लगे रहते हैं, लेकिन तालीम पे जोर नहीं देते हैं। तालीम पे जोर देना चाहिए और बाकी चीज लिल्लाह फिल्लाह करना चाहिए। जो नमाज है, इसी तरह से जो है अजान है, दिलवाना हो, देना हो, करना हो, ये सब जो है समझना चाहिए। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि मरकज के अंदर या जो इदारे हैं उसके अंदर कुछ फीस रखा जाए, और फीस रख करके जो जिस मरहले के तालिब इल्म है जो चीज सीख सकते हैं उसको सिखाया जाए। मिसाल के तौर पे अगर जो है मरकज के अंदर यूनिफॉर्म ही बनाना है, एक सिलाई मशीन रख दिए जो है, या 5 सिलाई मशीन रख दिए, उसमें यूनिफॉर्म करने के लिए एक आदमी को रख दिए, एक किसी दर्जी को रख दीजिए, तो वो जो है सिल रहा यूनिफॉर्म, उसी के साथ साथ बच्चे जो है सीख रहे हैं, उसी के साथ साथ सीख रहे हैं। इसी तरह से जो है बढ़ई का काम है, इसी तरह से जो है प्लम्बर का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, तो कुछ काम बाहर भी सिखाया जा सकता है जो मरकज और मदरसे में न हो सके, और कुछ काम को मरकज में भी सिखाया जाए जो मुमकिन हो सके और किया जा सकता है। इसी तरह से मरकज और मदरसे के लिए भी बाहर कोई महल, जिस तरह मैंने कहा कि आप जो है कोई इलेक्ट्रिशियन की दुकान हो जो मरकज का हो, मिसाल के तौर पे किसी मदरसे का हो, इदारा का हो, और उसके अंदर जो है रख करके आदमी को काम कराया जाए, उसी में जाके बच्चे सीखे भी, और वो जो है आमदनी का जरिया हो मरकज के लिए, तो इस तरह से भी किया जा सकता है। सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप चाहते हैं कि बच्चे बिल्कुल आजाद ना हो, और अगर वो कहीं सीखने के लिए जाए तो वो जो मदरसे की जानिब से जाए और आप उसकी हाजिरी लगाएं, ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ही होना भी चाहिए ताकि बच्चे आपके बिल्कुल जो निगरानी के अंदर हो, कोई भी काम सीखे तो आपकी निगरानी में हो और मुंतजिमीन की निगरानी में हो, ये बड़ी अच्छी बात है। बस ये चीज़ है कि जितने भी मुंतजिमीन है उन सबको चाहिए कि कम से कम हम लोग जो है अपने बच्चों के लिए ऐसा सिस्टम बनाए, ऐसी चीज़ बनाए, ऐसे जो है क्या बोलते हैं उसको निसाब तैयार करें कि हमारे बच्चे पढ़ के भी सीखें और प्रैक्टिकल तरीके से करके भी उसको सीखें। अल्लाह गुजराए खैर दे। बड़ी अच्छी बातें आपने शेयर की, बहुत अच्छी बात है, और इंशाल्लाह हम हर हफ्ते इस तरह से बैठेंगे, हर हफ्ते कुछ न कुछ नई बातें आप लोग भी शेयर करें, सारे लोग शेयर करें। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने कलिमात को 1 मिनट के अंदर खत्म करें। जी, तो मैंने वही कहा कि निगरानी में हम चाहते हैं कि सारी चीज निगरानी में हो, और उम्दा से उम्दा तालीम हो, उम्दा से उम्दा जो है सुनात व हिरफत जो भी जो है आदमी सीखना चाहते हैं तो उस उम्र के हिसाब से हम सिखाएं करें, और इंशाअल्लाह ये मेरा प्लान है और हम उसके लिए जो है तैयार हैं। और बस इखवान वगैरह से जो है हमें ताउन की जरूरत है, चाहे वो जानी ताउन हो या माली ताउन हो या इसी तरह से राय मशवरा हो, लेकिन सारे लोग मिल करके, मैंने हमेशा कहा है कि वो इदारा मेरा जाती इदारा नहीं है बल्कि सारे लोगों का इदारा है, और हम चाहते हैं कि तकरीबन जो है वहाँ के जो भी या प्रदेश नंबर 2 समझ लें, प्रदेश नंबर तक खास तौर से इसके जो है उसमें जो है प्रदेश नंबर 2 की जो है सरपरस्त हो मरकज। और मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कौन आकर के हाथ जो है आगे बढ़ा करके इसको संभालने वाले हैं संभालें, इसको करें। एक जो है हमने जो है पेड़ लगा दिया है, पौधा लगा दिया है, उसको जो है सींच करके ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनाए, उससे जो है लोग फल हासिल करें। तो उसके अंदर जितना भी हो सकता है, जिस तरह से भी हो सकता है, लोग कोशिश करें और हमें मशवरा दें, उसके लिए ताउन पेश करें ताकि हम उसको आगे बढ़ा सकें। तो यही चीज है। ये शेख हबीब मदनी साहब, आपने शेख अब्दुल मदनी साहब की सारी बातें सुनी। मैं चाहूंगा कि आधे मिनट के अंदर आप इसके ऊपर तबसरा करें। शेख हबीब मदनी साहब, आपकी आवाज शायद बंद है। सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। आधे मिनट के अंदर तबसरा। जी आवाज आ गई? आ रहा है आवाज। आ रही। ठीक है। शेख अब्दुल रहीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद बात की उन्होंने, और हम उस पे तबसरा क्या करेंगे, हम दुआ करेंगे कि जिस तरह शुरुआत किए हैं वो लोग, और जिस तरह शरह सद्र के साथ लोगों को दावत दिए हैं कि आए ये मरकज मेरा। चलिए शेख, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं चाहूंगा आप इसके बाद जो है शेख शरीफ तैमी साहब, आप सुन रहे हैं? हमें इशारा करके बता रहे, समझ जाऊं। जी। उसके बाद इंशाअल्लाह अब्दुल कदीर साहब हमारे हैं, वो भी शामिल हुए हैं,
اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے اور ہمارے احباب ہیں انشاءاللہ سب کو جو ہے انعام سیمی بھی ہیں اور بہت سارے احباب ہیں انشاءاللہ سب سے ہم بات کریں گے سب کی رائے اور سب کے مشورہ انشاءاللہ ہم لوگ شامل کریں گے تو ابھی اس کے بعد جو ہے میں صاحب نے اپنا میوٹ کر رکھا ہے ان کو کہیے کھول لیں جی ابھی آواز آ رہی ہے جی ہاں ابھی آپ نے کھولا ہے پہلے سے بند کر رکھا آواز تھا نا بند ہی رہتی ہے جی تو اس کے اوپر آپ تبصرہ کریں تبصرہ کیا جو میں بول رہا ہوں 5 منٹ کے اندر اپنے کلمات کو انشاءاللہ ختم کریں حامدا و مسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناحا ان تبتغوا فضلا من اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل الرجل بالید وکل رزق مغفور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے پہلی دفعہ آپ لوگوں کے روبرو چند باتیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اس کے لیے جس قدر بھی اپنے رب کا شکریہ ادا کروں بہت کم ہے۔ قاسم بھائی نے 2 پوائنٹ کو سامنے رکھا ہے، ایک تو یہ کہ تجارت کو عوام کے درمیان کیسے فروغ دیا جائے، دوسری بات یہ کہ اس لاک ڈاؤن میں علماء کرام ہی بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اس لاک ڈاؤن سے، تو اس کے کیا اسباب و علل ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ انہی 2 پوائنٹ کو سامنے رکھ کر کے گفتگو کی جائے تو بہتر ہے۔ جہاں تک تجارت کی بات ہے تو تجارت کی اہمیت و فضیلت اور اس کے فوائد کو میرے خیال میں ہر کس و ناکس سمجھتے ہیں کہ حصول رزق کے لیے تجارت سے بہتر اور کوئی شے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں بہت سارے مقامات پر لوگوں کو تجارت کی ترغیب دی ہے، بلکہ تجارت کو ایک بہترین نام فضل الہی کا ہے، جس سے تجارت کی اہمیت اور دوبالا ہو جاتی ہے۔ عوام کو تجارت کے تعلق سے بتانے کی میں سمجھتا ہوں اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام تجارت کی اہمیت و فضیلت اور فوائد کو سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ تجارت میں قدم نہیں ڈالتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غفلت اور لاپرواہی کی بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام موجودہ دور میں حد سے زیادہ پریشان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرانے بزرگ لوگ جو جاہل تھے تو انہوں نے زراعت کر کے، کھیتی باڑی کر کے اپنے بال بچوں کو پڑھایا اور انہیں عقل اور شعور عطا کیا۔ اب یہ ہے کہ ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں تو پڑھا لکھا کر کے بڑا کر دیا، باشعور بنا دیا، اب ہمیں تجارت میں قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس لاک ڈاؤن میں بہت سارے بزنس مین، اگر ان کی کوئی بزنس ٹھپ پڑ گئی تو انہوں نے وقت اور حالات کو مد نظر رکھ کر دوسری بزنس اسٹارٹ کیے ہیں، لیکن علماء کرام اس قدر کیا کہتے ہیں لاپرواہی سے کام لیتے ہیں کہ وہ تدریس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ حالانکہ کسب معاش کے لیے کہیں پہ یہ بات مذکور نہیں ہے کہ تدریس ہی سب سے بہترین ذریعہ ہے، بلکہ کسب معاش کے لیے تجارت سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ہاں البتہ قرآن و حدیث میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی تجارت کریں،
کچھ بھی کریں تو اس میں حلال و حرام کی تمیز کریں۔ میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتاتا ہوں کہ 4 ایسی چیزیں ہیں، اگر کوئی انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی بھوکا نہیں مرے گا۔ اگر کوئی انسان 4 چیزوں سے لیس ہو تو زندگی میں کبھی بھوکا نہیں مرے گا، اور اگر 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز کی کمی اگر کسی انسان کے اندر ہے تو وہ زندگی کے نشیب و فراز میں کہیں نہ کہیں اسے پریشانی لاحق ہوگی۔ پہلی چیز ہے علم، دوسری چیز ہے ہنر، تیسری چیز ہے صحت، اور چوتھی چیز ہے عقل۔ آپ ان 4 چیزوں پر غور کریں تو ہمارے علماء کرام ہنر سے خالی ہوتے ہیں۔ علم تو ہوتا ہے، عقل تو ہوتی ہے، اور صحت بھی الحمدللہ رہتی ہے، لیکن ہنر نہ ہونے کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی پریشانی زندگی میں آتی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ علماء کرام ہنرمند بنیں، اور جو لوگ مالدار ہیں، سرپرست ہیں، صاحب مشروع ہیں، ہماری ان سے درخواست ہے کہ وہ نوجوانوں کی معیشت کی اصلاح کے لیے یا علماء کو برسر روزگار بنانے کے لیے ٹیکنیکل اسکول جگہ بجگہ قائم کریں۔ اسی طریقے سے وقتاً فوقتاً ہنرمندی کے مقابلے کرائے جائیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ نوجوانوں میں جوش اور جذبہ پیدا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں، مشروعاتی کام کر رہے ہیں، سب مساجد، مدارس ہی کو ترجیح دیتے ہیں، کبھی کسی نے ٹیکنیکل اسکول کھولنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، یا کہ ان کو اس طرح کا کوئی مشروع نہیں ملا۔ میں ایسے لوگوں کو کہوں گا کہ وہ جہاں دینی ادارے اور اسی طریقے سے دیگر مشروعات کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہیں وہ ٹیکنیکل اسکول کے لیے بھی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اور اس طرح کے اسکول قائم کرنے کی کوشش کریں، تو میرے خیال میں نوجوانوں کا، ہمارے سماج کا کلیان ہوگا۔ اور جہاں تک بزنس کی اہمیت یا یہ کہ مدارس میں بزنس کو فروغ دینے کا جہاں تک سوال ہے، تو یہ بزنس یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ اس کو 4 سال 5 سال نصاب میں داخل کر کے اس کے تعلق سے تعلیم دی جائے، بلکہ اس کے لیے 3 مہینے 6 مہینے کا کورس ہی کافی ہے، جس کو بچہ فراغت کے بعد بھی اس کورس کو کمپلیٹ کر کے بزنس کے تعلق سے بہت ساری معلومات اکٹھا کر سکتے ہیں، اور بچے اپنے من پسند بزنس کو اوپن کر سکتے ہیں۔ کہنے کی تو بہت ساری باتیں ہیں، اور بزنس یا یہ کہ تجارت کی اہمیت ہم بھی سمجھتے ہیں، علماء کرام بھی سمجھتے ہیں، ہمارے کیا کہتے ہیں انبیاء کرام نے بھی، بعض نے تجارت کو ترجیح دی، بعض نے زراعت کو ترجیح دی، کسی نے کھیتی باڑی کی، تو کسی نے کیا کہتے ہیں تجارت کی، کسی نے سلائی کا کام بھی کیا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اپنا پیشہ بنایا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ
انصار وغیرہ زراعت کا کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات بھی کروائے، لیکن جو مہاجرین مدینہ گئے ہوئے تھے انہوں نے تجارت کو اپنا پیشہ بنانا ترجیح دیا۔ حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان مواخات کروایا تو سعد بن ربیع نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ اے عبد الرحمن، ہماری جتنی بھی جائیداد ہے ہم اپنی جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ کا مالک آپ بن جاؤ اور دوسرے حصہ کا مالک میں رہوں گا۔ ہمارے پاس 2 بیوی ہے، ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں اور تم اس سے شادی کر لو۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، کہ سعد بن ربیع، اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال و منال میں، آپ کی اولاد میں برکت عطا فرمائے، آپ مجھے بازار کا راستہ بتائیں، بازار کدھر ہے؟ پھر عبد الرحمن بن عوف بازار کی طرف گئے اور انہوں نے گھی کا جو ہے بزنس اسٹارٹ کیا، گھی کا خرید و فروخت شروع کیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بزنس میں ان کو اس قدر ترقی عطا فرمائی کہ وہ مدینہ کے مالدار ترین انسانوں میں شمار ہونے لگے۔ تو تجارت کی اہمیت ایسا نہیں ہے کہ عوام بھی سمجھتی ہے، بس یہ ہے کہ ہم گھبراتے ہیں کہ کہیں پتہ نہیں ہماری بزنس ناکام ہو گئی، ہماری تجارت کامیاب نہیں ہوئی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہمارا بہت کم جو ہے بھروسہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو ہے بھروسہ کریں اور کیا کہتے ہیں، اللہ کے نام سے بزنس اسٹارٹ کریں۔ علماء کرام سے ہماری درخواست ہے کہ جو بھی مولوی مولانا پریشان حال ہیں وہ پریشان ہونا بند کریں۔ میں 2 روز پہلے فیس بک پہ کسی کا پوسٹ دیکھا، انہوں نے لکھا تھا کہ کاش میں مولوی نہ ہوتا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ایک مولوی بن کر کے ایک شخص کیسے کہتا ہے کہ کاش میں مولوی نہیں ہوتا۔ بہرحال ان کو اپنی زندگی میں جو پریشانی آئی تھی انہوں نے اپنی سمجھ سے اس طرح لکھ دیا تھا، لیکن بہرحال عالم ہونا یہ ایک فخر کی بات ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک عالم ہمیشہ جو ہے احساس کمتری میں مبتلا رہتا ہے، تو عالم علماء کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اور وقت کے حساب سے اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس ایک ہی پیشہ سے جڑ کر کے اور اسی میں مغز ماری کریں اور ایک دوسرے کو کوسیں اور اپنی پریشانی دوسرے کے سامنے رکھیں۔ یہ ہمارا اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام جہد مسلسل اور عمل پہم کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے وقت کے حساب سے جو بہتر چیز سمجھ میں آئے ایک عالم کو کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ شیخ عبد الرحیم مدنی صاحب نے بہت بہترین چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے مولوی مولانا کے تعلق سے، کہ مولوی مولانا کو کیا کہتے ہیں، حقیقت میں وہ آج کل بہت سارے مولوی مولانا نماز پڑھانا بھی مطلب کیا کہتے ہیں ڈیوٹی میں شامل کرتے ہیں، اور یہ وہ ڈسٹیٹ۔ بہرحال ہمارے اندر بھی بہت ساری کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم
मौलवियों को अपने समाज में अपना मकाम बहाल करने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। आज हकीकत यह है कि हम लोगों ने अपना वक़ार और अपनी इज़्ज़त खो दिया है, जिसकी वजह से हमें तरह तरह की परेशानियां लाहिक हो रही हैं। बल्कि मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि आज हमसे इमामत भी छीन चुकी है और क़यादत भी छीन चुकी है। हर समाज के अंदर क्या कहते हैं जोहला हमारे मनासिब पे जो मौलवी मौलाना का मनसब है उस पे हावी हैं। ये हमारी बदआमालियों का नतीजा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुधरने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी बेहतरीन नसीहत आमोज़ आपकी गुफ्तगू रही। अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत दे और इन सारी बातों के ऊपर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं उसैदुर रहमान भाई से इस्लामी भाई से अर्ज करूँगा कि आप जो सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि ये बहुत ही जो हमारे भाई लोग हैं अभी नौजवान किस्म के जो तबका है माशाल्लाह बहुत ही मुतहर्रिक किस्म के लोग हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, है ना। तो मैं चाहूँगा कि उसैदुर रहमान इस्लामी साहब आप जो है 2 मिनट के अंदर, और हम लोग आदमी जो है अपने अपने मिनट का जो है ख्याल रखें, है ना, और इसके ऊपर आप गुफ्तगू करें, ठीक है जी उसैदुर रहमान भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। जितने भी शेख जो है अभी फरमाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, और जो है लोगों को अच्छी बातें बताना भी चाहिए। अभी के माहौल के एतबार से देखा जाए तो कहना ये जरूरी होगा कि जो है किसी अदारा या किसी स्कूल या किसी भी चीज को मान लें तो उसके तहत चलना बहुत बेहतर है, आगे कामयाबी भी मिलेगी। शर्त यह है कि किसी चीज में रूल्स होना चाहिए, नियम और कायदा कानून जो होता है उस हिसाब से चलने तो बेहतर है, आगे का रास्ता जो है बेहतर हमवार होता है, ठीक है। और रह गई बात जो हम लोग जो है कि ये क्या कहते हैं मकसद हयात को जो है कि एक टीम के शक्ल में जो है हम लोग जानते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी शेख है, चाहे सऊदी में रहते हो, नेपाल के या नेपाली में वो हो अभी मौजूद, या कतर के अंदर हो या कुवैत के अंदर हो, जहां भी हो, उन लोगों से बस यही अपील है और दरखास्त है कि इस टीम को ज्यादा से ज्यादा मजबूती की तरफ लाएं, और मजबूती की तरफ लाने के बाद आगे का रास्ता कैसे निकाला जाए या हमार कैसे हो, है ना, या किसी जैसे कि शेख अब्दुल रहीम साहब जो है कि बयान फरमाया, अभी इदारा का नाम लिए हैं, या फुरकानिया हो, कोई भी हो, मरकज बयाना हो, कोई भी हो, बिल्कुल सही बात है। एक जाती तौर पे उसमें उसको जो है इमदाद करना बेहतर है, ये सही है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर इज्तिमाई शक्ल में जो है कुछ जैसे कि मैं इशारा करूंगा जामे सल्फिया जो है कि जनकपुर का जो है, तो उनके मुतालिक से तमाम लोगों का रुझान एक होना चाहिए, ठीक है। और रुझान हो करके, और ये भी हमको मालूम है कि मतलब जामे सल्फिया जो पहले बहुत जो है कि आला तालीम जो वहां से जो है कि शुरू हुआ और जो है कि तालीम दी जाती थी, बड़े कैफ जो है कि बाद में जो भी उलझने परेशानी हो या जो भी चीज का इख्तलाफात जो भी कहें, उसके वजह से जो है कि अभी कुछ जो है कि नीचे की तरफ जो है कि वहाँ तालीम जो है कि अभी हो रहा है, या चाहे जो अभी शुरुआत या जो चल रहे हैं, तो ये ना ये देख करके बस यही कहूंगा कि जो है कि जितने भी शेख लोग हैं या जो शेख नहीं भी हैं, या पढ़ने वाले तालिब इल्म में जामिया में हो, चाहे मुल्क कुरान में हो, चाहे जहाँ भी हो, या जो है कि अदना सा उस्ताद जो है अभी नेपाली के अंदर हो, तमाम लोगों को इसमें जो है कि शामिल करें, और शामिल करने के बाद बजाय अगर यहाँ कतर के अंदर है
जी शेख, तो मैं ज्यादा इसलिए कि आप टाइम भी जो है मुतय्यन कर दिए हैं, बजाय लिमिट टाइम दिए हैं, तो मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा। बस एक ही अल्फाज कहूंगा कि जितने भी लोग हैं पहले इस मकसद हयात को जो है कि मजबूती की तरफ लाएं और इसको मजबूती और एकदम बिल्कुल ही ठोस और मजबूत जो है कि उनको बनाए, चाहे माली एतबार से हो, चाहे जो है कि गुफ्तगू के एतबार से हो, राय मशवरा के एतबार से हो, जिस नौयत से देखा जाए तो इसको मजबूती पहले करें। उसके बाद इंशाअल्लाह जितने भी लोग हैं तमाम लोगों से मशवरा लिया जाएगा। लेने के बाद गांव के अंदर क्या बिगाड़ है क्या नहीं है, अभी मेरे हिसाब से मेरे ख्याल से कि उलमाए कराम जो है कि आपस में एक दूसरे से जो है कि ये क्या कहते हैं तानाकशी या जो भी कह लें ये सब ना करें, इस पे बात तबसरा नहीं होनी चाहिए। अभी जिस मकसद के लिए जो है ये टीम खुला है या जिस मकसद जो मकासद हम लोग के अंदर है जो है कि हम जहन में है, बस उसके तरफ ध्यान देना है। बस मैं यही कहूंगा। ठीक है मुझे कासिम साहब जी। हमारा ठीक है, हमारे साथ अभी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, है ना। उसमें जी से सर। मौलाना अकबर साहब अलहा, मुश्ताक अली मोहम्मद, है ना। अब पता नहीं जी कुछ जी दुनिया का अन्य का गरीब जो है, ये नाम अपना नहीं है, इंशाल्लाह मैं इसके बारे में बात करता हूँ। अब्दुल कदीर जी शेख शहीद साहब देखिए शेख, सुने जी जी शेख अब्दुल कासिम साहब, बस 2-4 मिनट का वक्त दीजिए और उसी में जो है कि अपनी बातों को जो है कि मुख्तसर में बात पूरी कर करके, बस इसलिए कि बस यही नहीं कि आज ही जो मुकम्मल बात पूरी हो जाएगी, ये भी नहीं जी है। जी जी बाद में इसे इंशाल्लाह सिलसिला वार जो हमेशा चलता रहेगा जो है कि, इसलिए जो है कि कुछ इसलिए कि सबों को मौका मिले, सब वो अपनी दिल की बात कहें, अपनी जहन में जो भी बातें सब अपनी। जी जी 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है हमारा, और अभी सारे हाँ जी जी इसलिए मैंने 1-1 मिनट का टाइम दिया है, तो उसका ख्याल रखें आप लोग, है ना। इंशाल्लाह बाद में फिर आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, क्योंकि आज हमारे इंशाल्लाह। थे तो मुनासिब था कि उन लोगों को सुना जाए, और ये मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि हम लोग हैं तो कभी भी हम लोग बैठ करके बातचीत कर लेंगे, है ना। जी जी बिल्कुल हम लोग बिल्कुल 1-1, 2-2 मिनट में बात रखते हैं, बात 1-2 मिनट में भी पूरी हो जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब इसके बाद में आमीन आमीन। शेख अब्दुल कदीर शेख शहीद, सबसे पहले तो मैं आपका तारुफ जानना चाहूंगा कि आप अपना सबसे पहले तारुफ पेश करें, और उसके बाद जो है आपको भी इंशाल्लाह 2 मिनट दिया जाता है। आप भी 2 मिनट के अंदर जो है अपनी बातें इल्म और तिजारत उलमा के अंदर कैसे हो उसके ताल्लुक से आप जो है बयान करें। उससे पहले शेख हबीब मदनी साहब कुछ बोलना शेख चाहते हैं, तो शेख बोलें। शेख कासिम साहब, हम माजरत चाहते हैं, असर की अजान हो रही है, हम लोग सफर में हैं, लेकिन आप लोगों के मोहब्बत ने जोड़ा था, जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, वापस आएंगे। अगर आप लोग मुस्तमिर रहे तो फिर मैं भी जुड़ जाऊंगा, और अगर नहीं मुस्तमिर रहे तो मेरे तरफ से सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह जज़ाए खैर दे, कामयाब करे। अब मुख्तसर बात यह है कासिम मौलवी साहब, यानी कि सेहरा उठाना पड़ेगा, उठाइए, आगे बढ़िए। सब लोग इंशाल्लाह प्यासे हैं, लेकिन किसी रहबर की जरूरत है, किसी कायद की जरूरत है, किसी कप्तान की जरूरत है। अल्लाह आपको जज़ाकल्लाह। और दिल को कुशादा, वसे सदरक, दिल को कुशादा कीजिए। आमीन आमीन। चलिए शेख अब्दुल कदीर शेख शहीद साहब, आप अपना तारुफ पेश करके जो है अपनी बातें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलैहिल्लज़ीना आमनु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र के बाद आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। सबसे पहले मेरा नाम अब्दुल कदीर शेख शहीद, मैं नेपाल से मेरा ताल्लुक़ है, 2 नंबर प्रदेश जिंगरवा रोहतक नेपाल से। फिलहाल मैं जामिया उम्मुल कुरा का एक तालिब इल्म हूँ, बकालरीस का। वक्त ख़त्म हो चुका है, तकरीबन अजान होने वाली है, इसलिए मौजू के तरफ न जाते हुए मैं कुछ नुकात बताना चाहता हूँ और इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। सबसे पहले हमारे जो मदारिस है और मदारिस के जो जिम्मेदार है, उनको चाहिए कि सबसे बेहतर और सबसे अच्छा जो तनख्वाह हो, मुनासिब, जो हम मुनासिब कहते हैं, मुनासिब तनख्वाह दी जाए जिसके वो हकदार है। और दूसरी बात यह कि
जो वालिदैन है उनको चाहिए कि अपने बच्चों को जब मदरसे के अंदर दाखिला कराए तो मदरसे में कुछ ताउन करे, और इसके अलावा मदारिस के जो जिम्मेदार है उनको चाहिए कि अपने मदारिस के अंदर कंप्यूटर रखे और इस तरह कुछ ऐसी चीज़ें रखे जिसे इल्म के साथ साथ दुनियावी चीज़ भी हासिल हो। जब हम ये चीज़ें हासिल करेंगे तब जाकर हमारी ये मुफलिसी ख़त्म होगी। हम जानते हैं कि हमारे उलमाए कराम और जितने भी बच्चे मदारिस में आते हैं वो अक्सर गरीब होते हैं, मालदार के बच्चे नहीं आते, गरीब के बच्चे ही आते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि इन चीज़ों पर गौर करें। और दूसरी बात यह कि मदारिस के जो जिम्मेदार है वो एक चीज़ पर और ध्यान दे कि जो उस्ताद है, टीचर है, वो कौन सा मादा पढ़ाना चाहते हैं। अगर वो इंग्लिश के टीचर है तो उनको नेपाली में न लगा दे, नेपाली के टीचर है उनको मैथ में न लगा दे। जो जिनका हक है उनको उनके हक पर रखे। और ऐसे बातें बहुत है, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मौका मिला तो तफसीली गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। ये अजान हो रही है और नमाज बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को खुश रखे और आपके मकसद को कामयाब बनाए, और जिस तरह आप लोग मेहनत कर रहे हैं मकसद हयात दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों के मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। माशाअल्लाह चंद मिनटों के अंदर बहुत बड़ी अच्छी बात है आपने कही, है ना। इसी तरह से आप शामिल होते रहें और लोगों को भी शामिल करते रहें। हम लोग बहुत हम चाहते हैं कि हमेशा के ऊपर गुफ्तगू हो। जैसे एक बहारा समझ लीजिए, हमारे यहाँ जो दालान होता है, बस यही है कि हम लोग अब एक दालान के अंदर बैठे हुए हैं। घर से हम लोग कहीं हैं, दूर हैं, एक दूसरे को नजर भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक दालान की तरह हम लोग माशाअल्लाह पूरी दुनिया को अल्लाह ने कहा था क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दुनिया सिमट न जाए, है ना। तो दुनिया सिमट गई है और हम लोग जो है बिल्कुल करीब है, दूर दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे को सुन रहे हैं। तो माशाअल्लाह बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए हैं। अभी हमारे शेख सलामत साहब भी शामिल हुए हैं। और क्या कहते हैं कि इससे एंड्रॉइड बोलो कौन को नाम असल में आप लोग जो है नाम लिखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, है ना। बहुत सारे लोग जैसे कुछ दुनिया एक अकमल साहब भी है, इनाम तैमी साहब भी है। तो पता नहीं आप इनाम तैमी साहब का भी वीडियो खोलिए, मैं देख नहीं रहा हूँ उनको। नहीं यही है, नहीं उनका तो नाम लिखा हुआ है, यही है इनाम अजीम तैमी साहब। हाथ उठाइए जरा समझ में आए क्या आप हैं। इनाम अजीम तैमी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। मौलाना सफीउर रहमान साहब सुन रहे हैं अगर हमें तो जरा आप अपना हाथ दिखाते, या शेख अकबर साहब अगर आप भी हमें सुन रहे हो तो अपना हाथ दिखाएं। चलिए कोई बात नहीं है, शायद हम लोग नहीं सुन रहे, वीडियो असल में वो लोग मूव कर लेते हैं ना, इसको तो इसलिए जरा मुश्किल हो जाता है। शेख सलामत साहब कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है। जी तो वही तजारत और हिफत के ऊपर जो है हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, तब से 1 घंटा हो गया है। तो नहीं माशाल्लाह, देखिए इत्तेफाक की बात यह है कि बद इत्तेफाक से मतलब मैं सबकी तस्वीर को देख रहा था, वीडियोस को सुन रहा था, और अपना ही म्यूट वगैरह क्या क्या होता है वो सब नहीं किया था, अभी किया हूँ लास्ट में। तो शायद आपको नजर आया है कि मतलब ये, वैसे मैं साथ में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शेख शरीफ का भी सुना, शेख बशीर का भी सुना, और फिर बीच में अभी मैं चला गया था नमाज पढ़ने के लिए, फिर देखा कि मतलब शेख वसीदुर रहमान साहब भी कुछ बताए हैं, बोले हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। अब तो शायद आपका टाइम ही हो गया, और हम लोग तो साथ में रहते ही हैं, बातचीत होती रहती है। इंशाल्लाह ऐसे जुड़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे, और अल्लाह हम सबको कामयाब करे। अच्छा, इसमें एक हमारे और भाई हैं मुर्तजा, तो मैं चाहूंगा कि आप जो है 1 मिनट आप उसके ऊपर कुछ बोल दें, आप अपना तारुफ करा दें और जो अपनी बात अपने बारे में बताएं, और आप क्या कर रहे हैं वो बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। नेपाल से हूँ, अभी फिलहाल मैं भी कतार में हूँ, अलखोर में रहता हूँ, और मैं बलदिया कंपनी में काम करता हूँ ड्राइवर का। आज मैं आप लोगों के साथ पहली बार जुड़ा हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बात कर सकता हूँ। जो भी सुना हो अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत अच्छा लगा है। अगर आप लोग जो मदरसे के ऊपर हो या कोई शेख के ऊपर या किसी के ऊपर अगर आप लोग कोई बात करते हैं, अगर उसमें अगर हमको भी शामिल करना चाहते हैं तो हम
24 घंटा आप लोगों के लिए मैं रेडी हूँ, और कभी भी कोई काम के लिए हमको खोजेंगे तो हम तैयार हैं। मैं इतना ही कहते हुए मैं अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी हिम्मत अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और आप जैसे लोगों की और आप जैसे जवानों की और आप जैसे हिम्मत वालों की हमें हमेशा जरूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह हम आपको हमेशा याद रखेंगे, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहे। जब भी हम लोग साथ में आए तो कम से कम पता चले कि हम सब साथ में चल रहे हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं अभी भी लिंक भेजिएगा तो इंशाल्लाह मैं ज्वाइन होंगे। क्या चलिए ठीक है, अच्छी बात है माशाल्लाह। शेख मुश्ताक साहब जुड़े हैं अभी। वैसे थे तो पहले शायद हमारे कसर नमाज में पढ़ने चले गए होंगे, और वो बड़े टीन वाले घर के अंदर है, तो शायद इन्हें जो है मेरे ख्याल से गर्मी लग रही हो या सुस्ताने के लिए कहीं चले गए हों। मेरे अल्लाह की दुआ खैर दे कि बहुत सारे लोग जो है जैसे शेख शरीफ तैमी भी जो है वो अब तक जो है बाहर से अभी अंदर आ रहे हैं। तो बहरहाल गर्मी है, इसके बावजूद भी आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है 1 घंटे के लिए, है ना। तो शेख मुश्ताक साहब 1 मिनट आपका टाइम है, आप भी कुछ बोल दें, है ना, कि हम लोगों को इसके ऊपर कारबंद होना चाहिए और कैसे हम लोगों के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म पे सब लोगों को जमा किया, और बातें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हुई, और हमसे जो सीनियर लोग हैं उन लोगों ने बहुत अच्छे राय मशवरे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह सब अमल में लाने की ज़रूरत है इसको। और सबसे अच्छी बात जो हमारे शेख शरीफ तैमी साहब ने जो बात बयान की है कि हम लोगों को टेक्निकल जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि हम निसाब ही पे या बच्चे को पढ़ने ही टाइम में उसका निसाब में डाले 3 साल 4 साल का कोर्स कराया जाए, बल्कि फरागत के बाद भी सही बात बोले कि 6 माह का 3 माह का कोर्स होता है। और अक्सर भी जो बिजनेस कोर्स होता है, जैसे जनकपुर में आप देखे होंगे अभी हाल पे जो खुला है, उन लोगों का भी यही तरीका है कि वो लोग अगर किसी फील्ड में बनाना चाहते हैं, कुछ जैसे प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का, मोबाइल रिपेयरिंग का, कंप्यूटर का, इस सब का कोर्स जो है वो 6 महीने या साल भर या 3 माह इसी का होता है, और इसी तरह से करना चाहिए, यही बेहतर तरीका है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि हम लोग उसके लिए कोई लाहे अमल तैयार करें, और मदरसे में इस चीज़ को जहन में रखें। आलिम उलमा को खुद भी इस चीज़ को सोचना चाहिए, हम अपने बच्चों को इसके तरफ रग़बत दिलाए कि दीनी तालीम को दुनिया हासिल करने के लिए नहीं सीखें। बस सबसे पहली बात यह है कि दीनी तालीम को दीन के लिए सीखें, और उसके बाद जो है आपका जो दूसरा फील्ड है या दूसरा चीज़ जो करना है वो आप खुद करें, या हमारे जैसे गार्जियन जो है वो गाइड करे कि इसको किस तरह से करें। अस्सलाम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं ये कह रहा था कि देखें असल में होता क्या है कि फरागत के बाद हर आदमी चाहता है कि रोजी रोटी में हम लोग जो है पिल पड़े, और होता ये है कि उनको मालूम कुछ नहीं होता तो पूरा पासपोर्ट बना बाहर निकल लो भाई, है ना। तो बहरहाल आदमी तो रोजी रोटी हासिल करने के लिए कहीं कहीं जाएंगे, लेकिन चूंकि मदरसे के अंदर अगर उसकी पढ़ाई अगर होती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता थोड़े करके अगर सीख जाएंगे तो वो ज्यादा मजबूती आएगी उसके अंदर। जैसे हम लोग बचपन में दुआ याद किए थे, वो दुआ अब तक याद है, बाद में याद नहीं कर पाए कोई दुआ। वो सही बात है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, जो अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये है कि फील्ड जो है हम लोग शुरू से इसी तरह से गाइड करें, और अभी का जो माहौल है ना उसके हिसाब से हमें उस तरह से सोचना होगा कि हमें जो है दीन के साथ साथ दुनिया के साथ साथ दीन को भी लेके चलना है, यानी दीन के साथ साथ दुनिया लेके चलना है। ये नहीं कि हम तदरीस हर चीज को छोड़ करके बस एकता हो जाए, बस दुनिया ही को पीछे भागे रहे, तो फिर ये गलत हो जाएगा शायद। फिर हम चले ठीक है, अच्छी बात है। मैं ये कह रहा था ना कि दुनिया और दीन दोनों हमें सीखना है। ऐसा ना हो कि हम दीन तो सीख लें और दुनिया के ऊपर जो हमें कुछ भी ना हो तो भिखारी हमको बन के रहना पड़ा। और यही हुआ है तो कोरोना के दौर में सबसे ज्यादा जो परेशान है वो हमारे उलमा तबका ही है। तो ऐसे आगे के बच्चों के लिए हमें फ्यूचर के लिए सोचना है ना। तो इंशाल्लाह इसके मुताबिक राय अमल बनेगी। ठीक है, आपकी राय भी चाहिए और लोगों की राय भी होंगी, इसमें पढ़ाई हो कि ना हो वो सारी चीजें। मैं चाहता हूँ कि अब आखिरी मरहला है तो इसमें तो बहुत देर से हम लोग हैं, अब इस बीच में जो है एक मरतबा हम लोग जरूर शरीफ पढ़ लें। उसके बाद मैं चाहूंगा मौलाना शकील साहब जो है वो एक थोड़ा सा नात या नज़म को पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शेख शकील साहब आप जहाँ भी हो, आप यहाँ हाजिर हो और एक शेर अर्ज करें, एक नज़म पढ़ें। तैयारी है कि नहीं है ये बताइए। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। सलाम रहमतुल्लाह। जी जी याद तो नहीं है शेख, बस देखे पढ़ लेते हैं क्या लगा है। शेख सलामत भी था यहीं पर, वो तो पढ़ा ही था, मगर शेख सलामत को दे दे कम से कम, कहें शेख सलामत को देते एक मरतबा, याद है तो। तो बहुत अच्छा याद दिलाया आपने हो।
उनको याद नहीं है तो सहमत है। चलिए आज पढ़ लीजिए, आइंदा से इंशाल्लाह हम तरतीब देंगे आगे से कि जी कौन जी कुरान जी पढ़ेगा, जी कौन नाम चलिए पढ़ेगा, कौन हम पढ़ेगा, कौन तकरीर करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं कि यही गुफ्तगू हमेशा रहेगी, इंशाल्लाह दीनी व जी इस्लामी जी जी गुफ्तगू जी जी रहेगी जी जी और हर मौजूद के ऊपर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। जितने भी मौजूद हमारे माशरे के अंदर वो सारे मौजूद हम लोग गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। 2-2 मिनट 5 मिनट जो भी हमारे जैसे जैसे शरीफ होंगे वैसे वैसे हम लोग सबकी बातें सुनेंगे। और आप लोग इससे मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग सब शामिल हो हमारे साथ। तो जी शकील जी जी। साहब आप नज़म पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जन्नत में अपना मकान बनाते हैं नमाजी, जन्नत में अपना मकान बनाते हैं नमाजी, जन्नत में अपना मकान बनाते हैं नमाजी, सजदे के लिए सर को झुकाते हैं नमाजी, सजदे के लिए सर को झुकाते हैं नमाजी, चेहरे की चमक देख के लगता है कुछ ऐसा, चेहरे की चमक देख के लगता है कुछ ऐसा, के नूर हिदायत में नहाते हैं नमाजी, जन्नत में अपना मकान बनाते हैं नमाजी, वो चैन सुकून कोई कहीं पाता नहीं है, वो चैन सुकून कोई कहीं पाता नहीं है, जो चैन सुकून सजदे में पाते हैं नमाजी, जन्नत में अपना मकान बनाते हैं नमाजी, गर्मी की लपक हो या ठुठुरती हुई सर्दी, गर्मी की लपक हो या ठुठुरती हुई सर्दी, मस्जिद को बड़े शौक से जाते हैं नमाजी, जन्नत में अपना मकान बनाते हैं नमाजी, जन्नत में अपना मकान बनाते हैं नमाजी, फरहत हो खुशी हो रंजो अलम फिर, फरहत हो खुशी हो रंजो अलम फिर, हर हाल में गुन रब के ही गाते हैं नमाजी, जन्नत में अपना मकान बनाते हैं नमाजी, जन्नत में अपना मकान बनाते हैं नमाजी, हो दोस्त कोई सामने या दुश्मन जानी, हो दोस्त कोई सामने या दुश्मन जानी, हक बात हर इंसान को सुनाते हैं नमाजी, जन्नत में अपना मकान बनाते हैं नमाजी, जन्नत में अपना मकान बनाते हैं नमाजी, रिफयत हकीकत भी जरा गौर से सुन लो, रिफयत हकीकत भी जरा गौर से सुन लो, शैतान की जमात को रुलाते हैं नमाजी, जन्नत में अपना मकान बनाते हैं नमाजी, जन्नत में अपना मकान बनाते हैं नमाजी, सजदे के लिए सर को झुकाते हैं नमाजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उतना तो माशाल्लाह कुछ बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह बरकत कर दे। और आमीन आमीन या रब। इसमें हमारे इनाम सैनी साहब जो हैं वो आए तो है लेकिन वो दिख रहे हैं, लेकिन पता है ना उनका वीडियो मुझे ना उनका ऑडियो। आप सुन रहे हैं क्या इनाम हक साहब? क्या आप भी कुछ बोलिए, कुछ बोलते ही नहीं है, मुठ है आप। जी इनाम अजीम तैमी साहब। जी शेख, मैं इनाम अजीम तैमी नहीं हूँ, वो जो है ना उसका नेट का प्रॉब्लम है, वो गए हैं तो बता रहे थे मुझको ऐसी बात है, मेरा नेट काम नहीं कर रहा है। आप कौन है? आप थोड़ा अपना तारुफ कराइए और 1-2 मिनट आपकी चाहे तो इसके ताल्लुक से बोले। हमारे उलमा और हमारे तलबा वो कैसे अपना काम अदा करें, अपने हुनर को कैसे सीखें और कहाँ सीखें, कैसे सीखें,
कैसे हमारे अंदर तब्दीलियां आए, कैसे उलमाए किराम खुशहाल हो, कैसे ये जो है अपना काम करें, कैसे ये उलमाए किराम सबसे आगे बढ़ करके जो है वो सबका वो खैरात करें, और कैसे सारा काम सबसे आगे बढ़ के करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। देखिए यहाँ पर इस मीटिंग में मैं तो आप लोग के हिसाब से तो समझ के बहुत छोटा हूँ, और मेरी तालीम समझिए कि 2018 मेरी फरागत हुई है मुख्य इदारा से, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जामिया इस्लामिया फैज़ा में ज़ेर तालीम हूँ। मेरा नाम नसीर, मैं और इनाम अजीम तैमी हम दोनों साथ ही रहते हैं, हर चीज़ करते खाते पीते हैं, एक साथ रहते हैं। अब आइए, मैं शेख ने कहा कि कुछ बोलिए आप इसके बारे में। तो वैसे अगर किसी को अचानक कह दिया जाए तो जहन में वो चीज़ तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह मैं उस चीज़ को मैं कहता हूँ जहाँ तक हो सके मुझसे। क्योंकि किसी भी चीज़ की जो है ना ये करने के लिए सबसे पहले चीज़ है कि उस चीज़ पे आप मुताला करिए, आप पढ़े लिखे, या उसके बारे में आपके अंदर कुछ हो। खैर इंशाल्लाह मैं कहता हूँ फिर भी देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम आलिमों के लिए या जो भी तलबा या स्टूडेंट्स दीनी मदारिस से फारिग होते हैं और वो आते हैं, तो उसके ऊपर घर की जो जिम्मेदारी होती है वो आ जाती है। सोचता है कि अब कहीं जाऊं पढ़ाने के लिए, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है क्योंकि मैं 1 साल कहीं में पढ़ाया हूँ, उसके बाद मेरी शादी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं गया पढ़ाने के लिए, तो मेरे साथ बहुत सारी ये मजबूरियाँ थी, और जहाँ मैं पढ़ाने के लिए गया वहाँ मेरी सैलरी समझिए कि बहुत कम, क्योंकि मैं 20 साल में गया था पढ़ाने के लिए। और तो मैं देखा कि घर के हालात को देखा और माशी चीज़ को मैं देखा, तो मुझको जो है ना बहुत दुख हुआ और तकलीफ पहुंचा। तो इन्हीं चीज़ों के तहत जो है ना एक आलिम दीन के लिए या जो तलबा वहाँ से फारिग होते हैं उसके लिए चाहिए कि वो कोई तिजारत करे। क्योंकि अगर इस चीज़ पर यही राय दूंगा, चाहे जो भी हो, मैं हूँ या कोई और भी है, या अगर ऐसे भी लोग हैं जो क्या कहते हैं स्कूल के स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो उसके लिए चाहिए कि ऐसा ही मतलब पढ़ाई के साथ साथ कुछ आउट भी करें, ताकि उसके जो मतलब ये घर के जो अखराजात हो वो सही से हो और उसके फैमिली जो है ना सही से ज़िंदगी बसर कर सके। दूसरी बात ये कहूँगा शेख कि आज हम लोग सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग जब कोई चीज़ सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे बिजनेस वगैरह, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने अंदर से 2 चीज़ को ख़त्म कीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि हम और आप, चाहे आप सुनते होंगे देखते होंगे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे बिजनेस खोलेंगे, लेकिन खौफ खाते हैं, डरते हैं कि आखिर में क्या करूँगा मैं, अगर मैं करूँगा तो पता नहीं लोग हमारे साथ क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेगा, ये पढ़ा लिखा है, ये काम कर रहा है। नहीं शेख, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। अगर आप इस चीज़ को अगर ध्यान देंगे, इस पर अगर आप लोगों की बातों पर ध्यान देंगे, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है शेख कि शर्म हया, डर तो नहीं होता है लेकिन शर्म होती है, पता नहीं यार मैं ये काम करूंगा, कोई दुकान खोलूंगा, कुछ करूंगा, ये करूंगा, तो पता नहीं हमारे जो गांव के कोई ससुर लगेंगे, कोई दादा लगेंगे, कोई क्या लगेंगे, वो क्या कहेंगे मुझको कि पढ़ लिख के ये काम करा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि अगर आप किसी भी लाइन में रहे, चाहे आपका लाइन जो भी रहे, आप क्या कहते हैं उस लाइन में रहे, लेकिन आउट ही कुछ करें, मैं यही कहूँगा। और मैं यहीं से अपनी बात खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। आप लोगों का मैं दिल के अथाह गहराइयों से ममनून मशकूर हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह बैठ के बात है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बड़ा बहुत अच्छा मशवरा आपने दिया है। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं कलीम भाई जनकपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शेख। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत देर से इनाम करते करते ना किसी को इनाम मिल रहा है ना आप इनाम दे रहे हैं। उसके बाद हमारे कलीम भाई साहब जुड़े हैं जनकपुर से, और माशाल्लाह वो अपना बोर्डिंग स्कूल भी चला रहे हैं और बहुत अच्छा जज्बा रखते हैं, दीनी जज्बा भी रखते हैं, तजारत का भी जज्बा रखते हैं, और बहुत सारे जज्बात उनके भरे पड़े हैं। बल्कि वो अपने इलाके के अंदर अभी भी वो बंदा ऐसा है जो शेख अजमुद्दीन रिजवी के साथ मिल करके जहाँ जहाँ जाना होता है दावत और तबलीग का काम भी करते हैं। तो इसके बाद आपके बाद इंशाल्लाह मैं कलीम भाई को बोलूंगा कि वो भी 5 मिनट वो बोले और हम लोगों को जब बताएं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या और कैसे तजारत कर रहे हैं और कैसे क्या करना चाहिए हम लोगों को। तो हाँ, इनाम साहब कहाँ गए, आप भाग गए? जी अभी आ रही है। जी मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ शेख कासिम का कि आपने इस मीटिंग का इनेकाद किया, और मैं अपने बीच बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ और अकाबिरीन लोगों को पाकर के बहुत खुशी हो रही है।
اور جس میدان میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے قائد فضیلت الشیخ قاسم صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قدم کو آگے بڑھایا. چونکہ کسی بھی معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے کسی ایک آدمی کو حالات کو جھیلنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا ہوگا، اور کیا کہتے ہیں لوگوں کے کھٹے میٹھے اور اچھے اور برے تمام باتوں کو برداشت کرنا ہوگا، اور کسی کو آگے بڑھنا ہوگا، تب جا کر کے ہم جو ہے معاشرے میں کچھ کر پائیں گے. میں معذرت خواہ ہوں شیخ کہ میرا موبائل صحیح نہ ہونے کی بنا پر میں نے تمام باتیں نہیں سن پایا، لیکن مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے بیچ فضیلت الشیخ شریف تیمی صاحب بھی ہیں. میں نے شیخ کا بہت نام سنا تھا، اور میں شیخ کی بہت ساری تحریریں بھی پڑھتا ہوں. ہمارے بیچ ابھی موجود ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے. میں اپنے بیچ اور بھی بڑے بڑے اکابرین کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. تو شیخ آپ لوگ شاید مجھے جانتے ہیں کہ میں انعام عظیم تیمی، میں تیمیہ سے ثانویہ متوسطہ اور فضیلت عالمیت سب مکمل وہیں سے کیا ہوں، اور فی الحال ابھی میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں زیر تعلیم ہوں. شیخ آپ نے 1 منٹ دیا ہے، ابھی حالات حاضرہ پر شاید کہ آپ تمام لوگوں کی باتیں ہو رہی تھی. حالات حاضرہ پر بات کرتے ہوئے تقریباً ہمارے شیخ نصیر صاحب نے بھی بہت ساری باتیں کی، اور اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہوں گی. تو حالات حاضرہ پر بات کرتے ہوئے میں 1 منٹ میں اپنی یہ باتیں کہنا چاہوں گا شیخ کہ ابھی فی الحال جو ہم مدارس کے طلبہ ہیں، اور پھر یہ کہ ہمارے سماج میں جو لوگ پڑھ کے جاتے ہیں، انہیں اپنے افکار کو ذرا چینج کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ حالات کے اعتبار سے ہم چلیں اور حالات کے اعتبار سے ہم بنے رہیں. ایک دن میں نے ایک شخص کو فون پر کہا تھا، انہوں نے میری کسی بات پر انہوں نے کہا کہ آپ مولانا ہے یہ کریں گے. ان کا سوال تھا کہ آپ مولانا ہے یہ کریں گے. میں نے انہیں کہا کہ ہم مولانا ہے تو کیا ہو گیا، ہمارے نبیوں نے بکریاں چرائی تھی، آپ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ ہم مولانا ہے یہ کریں. یہ کہتے کہتے آپ نے مولانا کو بہت سارے کاموں سے روک رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے نا ہم مولانا بہت معاشرے میں کچھ ایسا کر رہے ہیں، اور کچھ ایسا اچھا کرنے کے چکر میں کچھ برا کر جاتے ہیں. ہم اپنے افکار کو چینج کریں، اور ہم کیا کہتے ہیں حلال روزی کمانے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کبھی بکری اگر ہم کو چرانے کی نوبت آئے تو ہم بکری بھی چرائیں. ہم کیا کہتے ہیں جمعہ کے وقت میں کیا کہتے ہیں اس کاروبار کو بند کریں، اور جا کر کے پھر جمعہ کی نماز بھی پڑھیں اور جمعہ کا خطبہ بھی دیں. ہم اپنے افکار کو چینج کریں، اور کیا کہتے ہیں جو سماج میں جو کیا کہتے ہیں لوگوں کی سوچ ہے ان کو ہم بدلنے کی ضرورت ہے. شیخ میں انہی باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. جی چونکہ آپ نے مجھے 1 منٹ کا وقت دیا تھا، اور کیا کہتے ہیں انشاءاللہ آپ یہ میٹنگ بار بار رکھیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے افکار کو جمع کر کے اور اپنے مواد کو جمع کر کے آپ کے بیچ ہم سب آئیں گے، اور پھر کیا کہتے ہیں اپنی باتوں کو شیئر کرتے رہیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر. ابھی مجھے ہنسی یہ آ رہی تھی کہ آپ نے نصیر صاحب کا نام لیا. نصیر صاحب ہمارے اخبار میں لکھتے ہیں، ان سے برابر جو چاٹی ووٹی ہوتی رہتی، لیکن وہ سامنے آ رہا میں پہچان نہیں سکا کہ یہ ہمارے نصیر صاحب. آپ نے نام لیا ہے تو میں سمجھا کہ یہ نصیر صاحب ہیں، ہے نا. جی 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 صحیح. اور ہم ہر راہ میں ہر جگہ سے ہم لوگ جو ہے اس وقت ہم قائد بنے. اپنے ہمارے اندر جو قائدانہ صلاحیت ہے اس صلاحیت کو لوگوں کے سامنے ہم اجاگر کریں. تبھی جا کر کے اگر ہم لوگ تاکہ رہیں گے تبھی تو جا کر کے صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے. کوئی کمزور بچہ نہیں پڑھ پا رہا ان کی کتابیں خرید کر کے دیں گے. کوئی ایسی بچی ہے جو شادی نہیں ہو رہی ہے ان کی بھی ہم لوگ شادی کروائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ہے، کہا کہ ہمارے بچے کی شادی کے لیے کچھ پیسہ چاہیے، پیسہ نہیں ہے تھوڑا سا دے دیجیے. کہا کہ جاؤ عثمان کے گھر میں جاؤ اور ان کے گھر جا کر کے تھوڑا سا مانگ لینا، ان کو میرا نام کہنا کو دے دیں گے. وہاں جب گئے تو آپ لوگوں نے واقعہ آپ لوگوں کو کیا سنانا، لیکن پھر بھی ہنسی لگانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے میں کہتا ہوں. وہاں پہ جب وہ گئے تو جب دنیا بھی بات ہو رہی تھی، ہاں تو ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے جو ہے چراغ کے اندر تیل جو تھوڑا زیادہ کیوں نہیں دے دیا تھا کہ ابھی چراغ بجھ گیا ہے نا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں. جب باہر سے یہ بات انہوں نے سنی تو واپس وہ دیکھا کہ ان کے گھر میں تو تیل ہی نہیں ہے، ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل ہی نہیں ہے، تو وہ ہمیں پیسہ کہاں سے دیں گے ہماری بچی کی شادی کے لیے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں جاؤ، ان کو معلوم نہیں کہ کون ہے یہ. تو میرے بھائی وہ لوگ وہ تھے کہ جب ان کی بکریاں مدینے کے اندر آ جاتی تھیں تو لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے کہ جہاں تک نظر آ رہا ان کی بکریاں ہی بکریاں نظر آ رہی ہے. تو میں ابھی اس کے بعد جو ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء اور ہمارے عوام بھی ہیں وہ سب تجارت کے اندر ہاتھ ڈالیں، تجارت کو فروغ دیں،
तजारत को समझें, उसको करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे इलाके से गरीबी खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद में कलीम भाई को मैं बोलूंगा कि वो भी 2-3 मिनट जो भी चाहे अपना वो अपना मशवरा दें, वो बोलें। और उसके बाद आखिर में मैं शेख अब्दुल रहीम मदनी साहब की दुआओं के ऊपर मैं इस मजलिस का जो है इख्तिताम करना चाहूंगा। शेख अब्दुल रहीम मदनी साहब अब हमारे साथ जुड़े रहे। 2-3 मिनट के बाद जो इंशाअल्लाह दुआ आपके दुआ कलिमात के साथ इंशाअल्लाह हम लोग जो है इस मजलिस का इख्तिताम करेंगे। चलिए कलीम भाई आप स्टार्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी माशाल्लाह बड़ी खुशी लगी, माने माशाल्लाह बहुत बेहतर, यानी उस जुमा को हम मिस गाइड हो गए, बाद में हमको पता चला। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर ये अभी जो जोम की तरफ मीटिंग हो रहा है बहुत बेहतर है। अल्लाह जा खैर दे माशाल्लाह। हमारे कलाम साहब, हमारे कासिम साहब माशाल्लाह, शेख हमारे सब माशाल्लाह बहुत मेहनत से अल्लाह ताला इसको कबूल करे। और बहुत बेहतर यानी ये तरीका है। और जो निज़ाम है अभी माने तिजारत का, ये सबसे अहम मौजू। और माशाल्लाह आज हम लोग ठहरा गए थे तो शेख हबीब साहब का लड़का वहाँ पे माशाल्लाह खुतबा शायद सुने होंगे, जुमा का खुतबा, माशाल्लाह उसी पे फोकस था कि हम लोग तिजारत में कैसे आगे बढ़े हम मुस्लिम लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। और हम भी एक तिजारत में एक और इजाफा अभी किया है लॉकडाउन के समय में। अच्छा माशाल्लाह। माशाल्लाह कॉफी जो है ना, ये शायद कॉफी दिखाई देगा, ये कॉफी देखिए एकरा कॉफी माशाल्लाह भाई, अरे मुबारक मुबारक, अल्लाह बारिक फीकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो बहुत ही खुशी और बहुत अच्छी बात है कि आपने कम से कम एक काम तो शुरू कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तरह कॉफी अगर आप बेच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम यही सोचे कि हमारे जो बच्चे सब है इकरा इस्लामिक इंग्लिश स्कूल में, उसको माने कम से कम शुरू से माने बच्चे से माने कम से कम बिजनेस के बारे में हल्का हल्का उसको पूछ के, भाई ये भी बिजनेस होता है, पढ़ाई के बाद में हमको बिजनेस की तरफ लगना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और माशाल्लाह एक कप माने कॉफी अभी 20 रुपया और 30 रुपया नेपाली में भी स्टार्ट किए है। इसको इंशाल्लाह और बेहतर ले जाएंगे और आप लोगों की दुआ की दरख्वास्त है। और माशाल्लाह माने यही सोच कि बच्चे को माने दिमाग में बैठा है भाई बिजनेस करना है, आगे जाके हमको बिजनेस करना है, कोई उद्योगपति बनना है, ताकि बच्चे को अभी से जहन में थोड़ा बसे। इसी वजह से इसको स्टार्ट करने का यही मकसद है। अल्लाह इसको बाकी कबूल करे। और बहुत बहुत शुक्रिया, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, फर्स्ट डे में आए हैं। सबको सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जरूर बताएं आप कि इसमें जो है कितना लागत लगा और कितने आदमी चाहिए और कितना उसमें क्या खर्चा आएगा। शेख इसमें 50% अभी लागत मैंने अपनी अभी मजदूर नहीं जोड़ रहे, खुद मेहनत की है। अभी लॉकडाउन में है, इसमें अभी मजदूरी हम नहीं लगाए हुए हैं, खुद मेहनत किए हैं। तो हमको 50% खर्चा पड़ा है, 50% मुनाफा है इसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा है शेख, बहुत अच्छा है। तफसील के साथ इसको जो है आप हमें बताइए बाद में। इंशाल्लाह तन मन धन से हम माने कोई स्कूल खोलने के लायक में इंशाल्लाह जितना सकेंगे उतना हम सहयोग करेंगे और इसमें भी इंशाल्लाह सहयोग करेंगे शेख इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुन रहा है सब आदमी? जी सुन रहा हूँ। जी सुन रहा है। जी माशाल्लाह। अभी जितने भी शेख हैं, शेख हजरात हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बात कहे हैं और सब पर इत्तेफाक रखता हूँ मैं। और जो अच्छे चीज़ है इसमें से जो अच्छे पॉइंट होगा वही लिया जाएगा और अच्छे से अच्छे हमारे जो माशरे में जो अहले तौहीद है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोग को इस पे गौर फिक्र करना चाहिए। ये हम लोग यही कहेंगे कि जो भी मदरसा से जो तालिम इल्म है, जो भी मौलवी साहब है, जो मौलवी साहब सुन जो निकलते वहाँ से, तो हम लोग निकलते तो बाहर आकर कहते क्या कि हमारे पास यानी दीन के इल्म के सिवा कुछ मालूम नहीं, कंप्यूटर मालूम नहीं, जितना भी टेक्निकल जो भी चीज़ है वो कुछ भी मालूम नहीं होता है, इल्ला उसको कुरान हदीस के सिवा कुछ नहीं बता सकते हो। क्योंकि हमको बाहर निकलने के बाद हमको क्या करना चाहिए, कंप्यूटर मालूम जो होना चाहिए। क्योंकि हम हो सकते हैं खुदा ने खास करे कुछ बहुत सारे उसमें 50-80% आदमी क्या करते हैं विदेश जाने की तैयारी करते, तो उसको वो क्या करते जाते यहाँ पर तो कभी क्या करते, जैसे कतर हो गया, मैं कतर की मिसाल ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या करते, मंदूब का काम करते, टाइपिंग सेंटर करते या अरबी के सिवा टाइपिंग करते, तो उसमें भी क्या करते हैं आदमी लोग जो मौलवी साहब सुने तो वो क्या करते हैं, सीखना पड़ता है 2 महीना 4 महीना इस तरह से सीखना पड़ता है। बहुत सारी परेशानी होते हैं, 2 महीना 4 महीना कंप्यूटर सीखो, ये सीखो, वो अरबी सीखो वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो ये चीज़ हम लोग पहले से तैयारी करना चाहिए हम लोग को। तो मैं यही कहूँगा कि हम जितने भी आलिम हैं, जो भी आलिम हैं हजरात हैं, शेख है, तो उनको क्या करना, जो बच्चे वगैरह जो तालीम फारिग होकर जो निकलते तो उसको कम से कम टेक्निकल मालूम जरूरी होना चाहिए, क्योंकि बाद में उसको काम आए।
यही तक मेरा बात था, मैं ख़त्म करता हूँ। और इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम में ज़रूर कुछ जो बात करेंगे उस पर मैं वजाहत करूँगा। इंशाअल्लाह मैं भी कुछ बात करूँगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब इसके बाद जो है मैं कलाम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी जो है 2 मिनट अपनी बातें रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। अब इसके बाद इंशाअल्लाह जो है इनकी बात के बाद जो है शेख अब्दुल रहीम साहब आ गए हैं, तो उनकी दुआए कलिमात के साथ जो है हम लोग इस मजलिस का इख्तिताम करेंगे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। सुने आप कलाम साहब को। देखिए, हम लोगों का ये जो जूम मीटिंग है और जो इसकी शुरुआत हमने किया है कि हम लोग अभी जो लॉकडाउन की वजह से हर आदमी एक जगह मीटिंग नहीं कर सकते। जैसे हम लोग कतर वगैरह में भी अभी हर जगह पूरी दुनिया में लॉकडाउन की वजह से एक जगह हम लोग बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम और कासिम भाई और हमारी मकसद हयात टीम ने सोची कि क्यों ना एक ऐसी जूम की शक्ल में मीटिंग की जाए और उनमें जितने हमारे आलिम उलमा हैं, क्योंकि सऊदी के ज़्यादा हमारे आलिम उलमा जो हमारे इलाके के खास करके धुलका जिला और सिद्धा जिला और मुस्तरी जिला के जितने भी हमारे आलिम उलमा ज़्यादा खास करके जो सऊदी में हैं और जैसे कतर गल्फ में हैं, तो क्यों ना उन लोगों से राय मशवरा लिया जाए। और जो हमारे इलाके में, क्योंकि हमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने काम की है, लेकिन कुछ काम हुआ और मुसलसल काम न होने की वजह से हम लोगों को जो रिजल्ट और जो हमको नतीजा मिलना चाहिए वो नतीजा नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने जूम की शुरुआत की है कि इसमें अपने इलाके में किस तरीके से मुसलमानों के अंदर जो एजुकेशन है उसको फरोग दिया जाए। जैसे हमारे पास जो स्कूल भी है, हमारे पास 12 क्लास तक की पढ़ाई होती है और खास करके जो भी आजकल इंजीनियर और जो भी दूसरी कैटेगरी है उसमें भी आज सरकार हमें फ्री दे रही है। तो हम लोग अगर प्राइमरी भी पढ़ाते अपने गांव में या अपने मोहल्ले में, तो एक मौलवी साहब को रख करके उसी पे हम छोड़ देते हैं और खास करके सिक्योरिटी पे, हजारती पे, उन पे हम डिपेंड करने लगते हैं कि हमारे बच्चे के वही जिम्मेदार है। और हम लोग माँ बाप बहैसियत माँ बाप उसका ध्यान नहीं देखते हैं। बहुत सारे जो लॉकडाउन 5-6-7 महीने चला है, बहुत सारे लोग हैं जो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चे घर में बैठे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने टीचर को हायर किया और टीचर उसके बच्चे को इस लॉकडाउन में पढ़ाया है। खास करके मैंने भी अपने बच्चों की जो लॉकडाउन थी उसकी वजह से हमने 5-6 महीने से टीचर को 2 टाइम हायर कर दिया था, तो घर में हमारे जितने बच्चे थे सबको पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारे जो इलाके में जो पढ़ाई के लिए मुश्किल आ रही है एजुकेशन की वजह से, तो मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़े और हम लोगों की फोकस होनी चाहिए। जो बच्चे 8 क्लास या 10 क्लास पढ़ रहे हैं या जो 10 क्लास पढ़ चुके हैं उनके ऊपर हम लोगों की फोकस होनी चाहिए और इस तरीके से उन लोगों को छोटी छोटी सी डिग्री भी दिला दें इंशाल्लाह, जिससे हमें और हमारे समाज को उस बच्चों से फायदा हो। क्योंकि हम लोग अभी इस मरहले में आ चुके हैं कि अभी तक हम लोगों से कोई एप्लीकेशन की जाती है, तो इन सारी चीजों को जो कि हम लोग बेहद नेपाली हैं, तो नेपाल में क्या रूल रेगुलेशन, क्या कानून है, वो हमारी जिम्मेदारी हमें मालूम होनी चाहिए और तभी जाकर के हमें तरक्की मिलेगी। लेकिन अब तक हम बदलाव नहीं लाएंगे तो कौन बदलाव लाएगा। तो इसी के लिहाज से मैंने ये मीटिंग जूम की शक्ल में रखा है और जो गल्फ वगैरह में रहते हैं, जो अगर अपनी जुबान से, अपनी बात से, अपनी मैसेज से लोगों तक पहुंचाना चाहते वो पहुंचाए। और जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हैं जैसे नेपाल में अपने इलाके में जो फिजिकली जा सकते हैं और वो लोग अगर उसकी पैसे की जरूरत है, अगर वो मोटरसाइकिल की खर्चा, मोबाइल की खर्चा और अगर कुछ जरूरियात है उनके, तो इंशाल्लाह अगर उसकी देनी पड़ेगी तो हमारी टीम उसके लिए हमेशा तैयार है। जो भी खर्चे हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हैं तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। और मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने जो बतलाए हैं कि आज हमारे पास मदरसे सारे बने हुए, लड़की के और लड़के के मदरसे बने हुए हैं। हम लोग बस फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे लिखा लिखी ना करके, बल्कि हमें जिसमें दिल चाहे उसकी सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी थोड़ी सी सपोर्ट से इंशाअल्लाह ये मदरसे भी जो बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बस लिखते रहते हैं कि ये मदरसे नहीं कर रहे, मदरसे वाले की जिम्मेदारी है। क्योंकि हम लोग जो मदरसे में पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, न कोई बजट ज्यादा ले रहे हैं, न कोई पैसा ले रहे हैं। उसके वजह से स्कूलों में एक बच्चे की चार्ज 15,000 20,000 चार्ज रहता है। फिर उसके बाद अच्छी पढ़ाई दी जाती है, उसके बाद उसको अच्छे खाना वगैरह कपड़े दिए जाता है। लेकिन हमारे मदरसे के अंदर में फ्री में पढ़ाया जाता है। मदरसे वाले मुंतजिमीन कहाँ से इतने पैसे लेकर आएंगे, कहाँ से खाना, टीचर की सैलरी, तो हर चीज मांग करके बेचारे क्या करें। मतलब खुद की भी बाल बच्चे, खुद की भी फैमिली है, उनको चलाना होता है।
लेकिन हम सब लोग बोलते हैं हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए उन मदरसे वालों का भी कि कम से कम वो कुछ खा करके भी चला रहे हैं, नहीं तो वो भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अभी हमारे इलाके में एक भी बनात नहीं थी जिसकी वजह से हमारी बच्चियां मतलब मऊ वगैरह जाती थी, किशनगंज वगैरह जाती थी। अभी अल्लाह का शुक्र है कि 3 4 5 इदारे हो चुके हैं। तो कम से कम हम लोग जानते हैं ना कुछ होते हुए भी कम से कम अपने इलाके में ये सारे इदारे हैं खुल चुके हैं। तो अगर उनसे कोई कोताहियां होती हैं, उनसे अगर कोई गलतियां होती हैं तो हम उनको कह सकते हैं। हम अपनी एक टीम की शक्ल में कि अगर आपके पैसे की जरूरत है, अगर आपको कुछ चाहिए तो हम लोग आपको देने के लिए, हम लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो आप हमसे जुड़िए। तो ये होता है कि हम लोग बाहर से बोलते हैं और जो इदारे चला रहे हैं, जो मुंतजिमीन है उनको पूछते हैं। अगर कोई गलत भी हो रहा है, अगर सही से मैनेजमेंट नहीं हो रही इदारे वाले की तरफ से, तो हम लोग उनको पूछते नहीं, कहते नहीं है। और दोनों तरफ से ये दोनों में प्यार मोहब्बत ना होने की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो आने वाले जो बच्चे हैं, जो नस्ल है, उनको सही प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, रहनुमाई नहीं मिल पा रही है, उसकी वजह से हम सारे लोग परेशान हैं। तो मेरा ये मीटिंग रखने का मकसद यही है कि इंशाल्लाह हर जुमे को इंशाल्लाह मीटिंग होगी। तो इस मीटिंग में हमारे बच्चों की एजुकेशन कैसे हो, नेपाल के लेवल पे हो। जो हमारे बच्चे अभी तो फिलहाल रिजल्ट नहीं आएगा, इंशाल्लाह आने वाले 10 सालों के अंदर में, क्योंकि अगर हम रिजल्ट लेना चाहेंगे हमारे बच्चों की मतलब तालीम के ऊपर, तिजारत के ऊपर, तो इन सब चीज पर इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर अभी से लेकर 10 साल तक काम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा। तो हमारा यही फोकस है कि हर जुमे के जो इंशाल्लाह जो आगे की जो ये मीटिंग जूम मीटिंग होगी, उसमें जो लोग कारोबारी शख्स है, जो कामयाब है, तो इंशाल्लाह उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा और वो अपने मतलब एक्सपीरियंस, वो अपने तजुर्बे शेयर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जुमे से। तो आप तमाम हजरात ये सारी चीजें भी फेसबुक पे लाइव भी चल रही है, तो बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जिनको मैं यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ, तो बुरा नहीं माने, क्योंकि ज्यादा जो वीडियो होता है वो सही तरीके से बात नहीं समझ में आती रहती है और फेसबुक पे शेयर नहीं होता रहता है। इसलिए अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जो खास लोग रहेंगे इंशाल्लाह उस तरीके से अपनी बात रख करके ये सारी बातें हम अपने इलाके के लिए, खास करके अपने इलाके जो सिरा जिला है, ये हमारा हम लोगों का फोकस है। और जो लोग भी जुड़ना चाहे अपने इलाके से शुरुआत करें, अपने गाँव से शुरुआत करें, और जितने भी हमारे लोग यहाँ पे जुड़े हैं सब अपने अपने गांव में इस तरीके के काम करें। और खास करके हम लोगों ने जो मकसद हयात टीम बनाई है, टीम की शक्ल में हम लोगों का यही विजन है, वही मकसद है कि नेपाल में छोटे छोटे बहुत सारे इदारे हैं अपने धौसा जिला में वगैरह में, इन सब लोगों को सपोर्ट की जाए, इन सब लोगों को थोड़ी सी मदद करेंगे इंशाल्लाह तो रिजल्ट बेहतर आएगा। क्योंकि कोई एक बड़ा इदारा खोल नहीं सकता, क्योंकि ये हम लोग का चैरिटी इदारा होता है, मतलब मदरसे मस्जिद में सब चैरिटी का होता है, तो इसमें ना किसी बिजनेस कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए दोनों की तरफ से जो मुंतजिमीन है उसको भी चाहिए कि आवाम से मिले, आवाम की अपनी बात, अपनी परेशानी को रखे, उसको क्या जरूरत है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एक इदारा 20-20 साल से चल रहा है, लेकिन जो नतीजे, जो रिजल्ट हमें मिलने चाहिए हमें नहीं मिल रहे हैं। तो इंशाल्लाह बात होती रहेगी। बस हमें यही है कि हम तमाम जितने भी मेरे सुन रहे हैं, मेरे दोस्त भाई लोग, सबसे ये कहे कि आप टांग न खींचे, बल्कि आप शाबाशी दे और हम लोग की हौसला अफजाई करें इंशाल्लाह। क्योंकि ये मीटिंग बैठाना, लोगों को जमा करना इतना मुश्किल, बहुत ही मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर थोड़े थोड़े से हम करेंगे, कहते हैं कि एक मरतबा किसी जंगल में आग लग गई तो सारे जंगल के जानवर मतलब के भाग रहे थे, लेकिन तो एक शेर ने देखा कि चिड़िया को देखा कि वो कुछ पानी दरिया से निकाल करके बुझा रहे थे। तो उसने कहा कि ये तुमसे क्या हो जाएगा, छोटा पानी है, तुमसे क्या हो जाएगा, सारे जानवर जो ताकतवर सब भाग रहे हैं। तो उसने कहा कि देखो अल्लाह ताला ने मुझे जितनी इस्तिताअत दी है मैं उतना ही कर सकता हूँ। कल में क़यामत के दिन हमसे पूछेगा कि तुमने क्या किया, तो कहा कि अल्लाह जंगल में आग लगी थी, मैं मुझसे जो हुआ मैंने अपना वो हक अदा कर दिया। इसलिए हम जितने भी भाई लोग हैं, मुसलमान भाई है जितने भी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कौम की खिदमत करने के लिए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के भलाई के लिए पैदा किए हैं। तो अपने बाल बच्चों के लिए तो सब खाते हैं पीते हैं, सब कमाते हैं, लेकिन कोई इदारा चला रहा है, कोई मदरसे खोल के चला रहा है, तो कम से कम कौम को जरूर फायदा होना है। तो इसलिए हम लोग हर वक्त निगेटिव सोच रखे न रखे, बल्कि इंशाल्लाह किस तरीके से इस्लाह होगी, किस तरीके से उसकी सपोर्ट होगी और किस तरीके से बेहतर होगी, उसके ऊपर हम तमाम लोगों को फिक्र करने की, गौर फिक्र करने की जरूरत है। अब मैं अपनी बात यहीं पे रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बात बड़ी बहुत अच्छी मिसाल है ना। इन्होंने कहा था कि
तारीख लिखने वाले जब लिखेंगे तो कम से कम ये तो लिखेंगे कि सारे लोग जब भाग रहे थे तो एक चिड़िया अपनी चोंच में एक कतरा पानी लेकर के आग बुझा रहा है। तो तारीख दाव के ऊपर जब लिखेंगे तो दुनिया वाले देखेंगे कि चिड़िया ने अपना काम किया, बाकी लोग भाग रहे थे। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब अपने अपने हिस्से का काम करें, और जब हम अपने हिस्से का काम कर लेंगे तो पूरी उम्मत के लिए, पूरी कौम के लिए कर सकेंगे। तो मैं एक ताकीद ज्यादा हो गई है, इंशाल्लाह तो भारत बात होती रहती है। जब हम लोग अपने ही हैं और जब बात होती है तो जाहिर सी बात है जम किया ही जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। इंशाल्लाह दोबारा भी हम लोग इस तरह से बैठेंगे, आने वाले जुम्मे को भी बैठेंगे। और मेरे शेख इब्राहिम मदनी हफिज़हुल्लाह से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जो है दुआ कलिमात के साथ इस मजलिस का एहतराम करें। शेख इब्राहिम मदनी हफिज़हुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे अखवान ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बतलाई हैं, और वक्त का तकाजा है कि हम लोग मिलजुल करके चलें और आपस के अंदर इत्तेफाक को इत्तेहाद हो। और ख़ास तौर से ऐसे वक्त के अंदर जो तकरीबन हम लोग झेल रहे हैं और सारे के सारे लोग परेशान हाल हैं, तो हम लोग दुआ के मोहताज हैं। बल्कि वैसे तो हमेशा दुआ के मोहताज रहते हैं, लेकिन ऐसे वक्त के अंदर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत सारे भाई समझते हैं कि या बहाना, यानी कहते हैं कि बीमारी इस तरह से है, लेकिन अपनी हालत को नहीं देखते हैं। हो सकता है कि यह बीमारी ख़ास तौर से जो इस वक्त में दुनिया के अंदर जो फसाद है, यानी जो बुराइयां हैं, उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तो हर आदमी अपने नफ्स की इस्लाह करे और उसके अंदर जो गलती है, जो बुराई है, उससे तौबा करे, उसकी इस्लाह करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हो सकता है कि हमें माफ कर दे, इसलिए कि इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो है दुनिया से चले गए, गुजर गए। अल्लाह को दिखाना मकसूद था कि अल्लाह की असल ताकत के सामने कोई जो है उसका इनकार नहीं कर सकता है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से है। तो बिलखुसूस जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हमें इत्तेफाक व इत्तेहाद से काम करने की ज़रूरत है, सबको मिलजुल करके करने की ज़रूरत है। और माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात जो है अब्दुल कलाम साहब ने जो है बतलाया है कि किस तरह से जो है क्या ज़रूरत है और किस तरह से करें। तो हम लोगों के लिए जो है वो चीज़ सारे लोगों के लिए, जितने भी उलमाए कराम हैं और बड़े बड़े लोग हैं और दीगर इख्वान हैं, सारे लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी गुनाहों की सज़ा हमें दुनिया के अंदर न दे, बल्कि उसे दरगुजर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे हमें जल्द से जल्द छुटकारा दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद को पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी लफ्ज़िशों को माफ़ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जो गुजर गए हैं उनकी गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों की इस्लाह फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला हम जो कुछ भी अल्लाह ताला हम नेकी करते हैं, छोटे बड़े, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस्लाह फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को आपस में, हम तमाम लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खात्मा हो तो ईमान और तौहीद के साथ हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि नबी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। के साथ जो है हम इसका इख्तिताम करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन। अब इंशाल्लाह जो है अगले जुमे के लिए भी हम इंशाल्लाह मैसेज करेंगे, और हर जुमे को होगा इंशाल्लाह 2 बजे से गुजारिश है कि आप लोग इसमें जरूर शामिल हो। इंशाल्लाह तजारत के ताल्लुक से बात हो रही है, इल्म के ताल्लुक से हो रही है, उसके बाद इस्लाम माशरा के ताल्लुक से भी हम करेंगे, और जिन जिन चीजों की जरूरत है हमें माशरे के अंदर, उन सारी चीजों के ऊपर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह कबूल। आमीन आमीन। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।